Welcome to Ranga and Ball Talk Football Podcast. Hey guys, what a wonderful weekend it has been. The Premier League week full of drama, controversy. भाई एक भी हफ्ता हम लोग को फ्री नहीं छोड़ सकते ये लोग बिना बोले, बिना आउटरीच हुए. मेरा गला सुन लो यार, मेरा गला सुन लो. मैं तो घर पे मैच देख रहा था, फिर भी मेरा गला देख लो यार. मतलब एक It's भी like वीक ऐसा नहीं हो सकता. मैंने बोला था पाल, हम पिछले चैंपियंस लीग वीडियो में कि खास इस बार प्रीमियर लीग थोड़ा हमें खुश करे. नहीं तेरा गला तो ब्रो वैसा लग रहा है, तू कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट से आया जो इंडिया में होने वाला है। नहीं मिला ब्रो. 29,000 वेटिंग लिस्ट में डाल दिया कोल्ड प्ले वाले ने. कोल्ड प्ले वाला को ट्वीट आता है, प्लीज बी पेशेंट. भाई 29,000 वेट लिस्ट में मैं पेशेंट में रहूंगा या नहीं रहूंगा. और मेरा दूसरे जो जो दूसरे जो बंदों का उनका 1 लाख हो गया. मतलब मेरा 29,000, उनका 1 लाख. मतलब लिटरली इन स्पेस ऑफ सेकेंड्स. मैन Yeah, Paul, how have you been? I think तेरे लिए तो it's a good week. I mean, good week for the good week for the Londoners except us. But let's start by saying out. Please like, share and subscribe, guys. देख लो हम लोग, मतलब वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट टू गिव द कंटेंट देन एंड देयर. हम लोग ये भी सोच रहे हैं कि सैटरडे वाला मैच तभी रिव्यू करके डाल दें, संडे वाला मैच तभी रिव्यू करके डाल दें, क्योंकि व्यूअर्स वी वांट यू टू कीप यू अपडेटेड ऑन आवर ओपिनियंस एज वेल. तो पाल, कैसा है ब्रो? Yeah, it was a good week for Chelsea, but it was a disgrace of a week for football. Yeah. Disgrace. There are too many terrorists, bro, in this footballing industry, bro. Too many terrorists. First of all, one was PGMOL. उनको तो हटा ही दो. They are मतलब like on the level of Taliban and all. Not Taliban, probably Al Qaeda and all. मतलब उनका level, उनका मतलब first level terrorist जो होते हैं ना, first grade level जिसको US पूरा अच्छे से ढूंढ रहा है और देखते गोली मार देगा. That was that. Second level of terrorist was Pep Guardiola today. जो उसने आज किया ना. And third level of terrorist are the players himself. मतलब each player कुछ टीम्स में, और वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. पर it was a week of bombings, bro. It was absolute a week of bombings like we used to have in India like in 2004 and all. I mean, never in this whole 5 weeks we have played in the Premier League, never in a single week we have not talked about the referees. Exactly. हर Bro, बार सबसे बड़ी हर बात वीक में कुछ ना कुछ UEFA में हमने हमने कब बात करी रेफरी के बारे एग्जैक्टली. में? हाँ अभी यूएफए में कब चैंपियंस बात लीग करी? 3 दिन लगातार मैच हुआ था. आई डिडंट थिंक कि हमने पूरा मैच में रिव्यू हाँ. किए थे सारे के सारे जो मेजर मैचेस थे. आई डोंट थिंक हमने किसी भी मैच के इवन बारे जो में आर्सेनल रेफरी के के साथ बारे में जो बोला. अगेंस्ट पेनल्टी हुआ था उसमें भी हमने दोनों ने मैंने डिसाइड किया था इट कुड बी गिवन और कुड नॉट बी गिवन. आई Exactly. एक्सेप्टेड इफ इट वाज हाँ. गिवन. मतलब हाँ. वी कैन अग्री टू अ सॉर्ट ऑफ अ कॉन्सेप्ट, बट मतलब वी कैन भाई सी द मतलब वो है कि वी कैन सी द रीजन व्हाई ही हैज गिवन द पेनल्टी और व्हाई ही हैज गिवन दैट फाउल और व्हाई ही हैज गिवन रीजन. वी Yeah. कैन सी द रीजन. Yeah. बट इन दिस वर्ल्ड ऑफ प्रीमियर लीग एंड इन दिस वर्ल्ड ऑफ ड्रामा, करप्शन, मनी एंड एवरीथिंग, Yeah. आई थिंक disgrace, absolutely disgrace of a week. Yeah. So yeah, I mean, let's start with the biggest game of the week. Yeah. I mean, it And was. didn't you एक second, did you notice I didn't say Arsenal the terrorist today because they play समझ गया, but because I knew and expected that to happen. Yeah. That's all. Yeah, we'll continue, Dinesh. Go Yeah, ahead. and I mean, let's start with the biggest game of the weekend, right? Yeah. Manchester City versus the Premier League champions versus the title contenders for the earlier season, and also people are crying out that we will be again the title contenders against Arsenal. I mean, against all the thought processes. I mean, we would never expect. People were expecting Arteta to basically do the same thing which he did against Tottenham, which he did, but he twisted the game. He changed the game. For the first 25 minutes, it was all City. I mean, in a summary, I'm summarizing what happened. In the first 25 minutes, it was all City, and then Arsenal sort of dominated the ball after City scoring, because this is what we and Paul and we expected. By a goal chahiye. If it's a goal, I think the whole match is going to change. And then Arsenal stepped onto the foot, and then it's a quick fire of 2 goals. A beautiful goal from Calafiori, which it's a controversial goal, which you're going to talk about anyway. And the second goal is from Gabriel, which is again the same guy who is Expected. But And no again, doubt on the his wonderful finishing. Yeah, No doubt on his finishing, bro. Yeah. Wonderful, absolutely. मतलब graceful finishing. So ये first half, it was a game of 2 halves. Okay, it was a game of 2 halves. So let's start talking about the first half right now. So first half का जो biggest
decision, one of the best play was done by Savinho. Savinho ने मस्त मतलब कैलाफियोरी के अंदर कट किया. There was not even, there's no Partey present, there was no Martinelli present, so he ran through that particular channel inside the inside our, in between the left back and the centre back, so in between. पार्टे को कवर करना था, पार्टे ने कवर नहीं किया. गैब्रियल को ऑफसाइड ट्रैप करना था, उसने नहीं किया. बट ही and Saliba was attracted towards Gundogan because he was taking a late run in the center. Saliba actually played for offside. He basically dragged out of the but instead उससे क्या हुआ, when he dragged out कि उससे क्या हुआ, it created a huge gap because Gabriel was not aware that Saliba was going out. He thought Saliba was basically dragging in, but इससे क्या हुआ कि there was a huge space for Haaland to run. And it was a beautiful pass. I mean, City और ये सब जो प्रीमियर लीग टीम्स हैं, सिटी, आर्सेनल, इतने हाई मतलब कैलिबर टीम्स हैं. इफ देयर इज अ स्पेस, आई थिंक ऐसा नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो कि द बॉल वुड नॉट बी प्रॉपर. द बॉल वुड बी प्रॉपर. इट्स बेसिकली द स्ट्राइकर्स जॉब टू फिनिश. और ऑफ कोर्स Haaland, you just have to give him some sniff of it, he will finish. और उसको पूरा पिच दे दिया. And what a beautiful, after a first touch, what a beautiful finish. Just like how Nicholas Jackson finished. But it was more of a I think Nicholas Jackson maybe had more to do, but Haaland had maybe bit less to do. But it was a very confident finish. And also finish. praise to Haaland. 100 goals in his just 105th game, and he has equalized Cristiano Ronaldo. And for Aguero actually took 150 plus games to score 100 goals in City, but Haaland has just scored 100 goals in just 100. Hats off to Haaland. I mean, he's a beast of a game, and he was up for it. जो पहला 45 minutes था, I mean, it was buzzing. I was buzzing, bro. I mean, क्या मजा आ रहा था. लड़ रहे थे लोग. I mean, it was almost to be a classic. मतलब classic ऐसे हो गया. ओ भाई, मैनचेस्टर सिटी वाला आर्सेनल भी एक क्लासिक हो सकता है. एक क्लासिक हिस्ट्री वाला गेम. मतलब पीपल वुड बी, मैं और पाल जब हाईलाइट्स देख रहे हैं, भाई दिस वुड बी अ हाईलाइट ऑफ, ऐसा चल रहा था. बट पाल, this is the summary of the first half, but I want to hear from you on the event breakdowns. जो पहला जो event breakdown हुआ, can you tell me about how Savinho scored the goal? I mean, Savinho did not score the goal, but almost gave a beautiful pass to Haaland. ये कैसे, मतलब how did this build up? So first of all, जो आर्टेटा के हमने बारे में बात करी थी लास्ट मैच में, एंड आई सेड कि ही नीड्स टू ओन दिस अप नाउ. व्हाट डिफेंसिव शिट ही इज डूइंग, ही नीड्स टू ओन दिस अप एंड डू दैट कंटिन्यूअसली. एंड इफ इट इज विनिंग हिज गेम, वेल एंड गुड. डिफेंस इज अ पार्ट ऑफ गेम. कोई बुरी बात नहीं है पूरा डिफेंस करने में. आर्सेनल ने जो आज किया, मैं परफेक्टली हैप्पी हूँ. आई एम नॉट सेइंग इट्स अ नेगेटिव फुटबॉल, टेररिस्ट फुटबॉल. आर्सेनल के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा मैं इस बारे में. आर्सेनल डिड देयर जॉब, व्हाट वाज आस्क्ड ऑफ देम, दे डिड देयर जॉब टू द टी. बिल्कुल, मतलब एब्सोल्यूट परफेक्शन जिसे बोल सकते हैं ना, आर्सेनल डिड दैट. बट और उसके बाद व्हाट आर्टेटा डिड, वो उसको भी डिफेंस में ले आया, कालाफियोरी को. नहीं, लेट्स टॉक अबाउट भाई. तो क्यों गेम में बहुत मतलब हुआ है यार. पहले तो सविनियो के बारे में बात कर, उसके बाद तो बहुत बड़ा इंसिडेंट आ रहा है. तू सीधा चला गया तू कैलाफियोरी के पास. नो, आई एम सेइंग द आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टार्टिंग 11. Okay. स्टार्टिंग 11 सेटअप में कि मतलब उसने बेन वाइट को पता नहीं क्यों राइट बैक से हटा के उसको खिलाया उसने टिम्बर को. आई थिंक ही नीडेड मोर फिजिकलिटी, बट बेन वाइट इज मोर फिजिकल. नो, बेसिकली टिम्बर भाई गांड फॉर फिजिकल है. टिम्बर इज लाइक मोर फिजिकल. वाइट ढीला था यार पिछले गेम में. एवरीवन, आई मीन, वाइट वाज वन ऑफ द पुअरेस्ट परफॉर्मेंस अगेंस्ट ब्राइटन. एंड प्रॉब्ली एंड ही एक्सपेक्टेड कि ग्रिलिश स्टार्ट नहीं करेगा, डोकू स्टार्ट करेगा, तो उसके लिए थोड़ा और इलेक्ट्रिक बंदा वाला. आई मीन, ही नीडेड अ प्रॉपर डिफेंडर एक्चुअली. एंड ही वेंट फॉर द कालाफियोरी वन ऑन द लेफ्ट. तो जो कि बहुत ही अच्छा डिसीजन था उसका कि मतलब इस गेम में, क्योंकि यू नीड मोर प्लेयर्स ऑन द बॉल, फुटबॉलर्स ऑन द बॉल तुम्हें चाहिए. क्योंकि सिटी के पास तुम्हें पता है कि सिटी पूरा प्रेस करने वाली है. एंड यू हैड 0.2 0.5 1 एट मोस्ट सेकंड की जब तक तुम्हारे पास प्लेयर आ जाएगा. तो उसके अलावा कि रादर देन गोइंग फॉर ए अपफ्रंट बंदा की जिसको मतलब हम खिलाएं, ही वेंट फॉर अ फुटबॉलर कालाफियोरी. एंड वी सॉ दैट टुडे. कालाफियोरी ने जिस तरह से पूरे गेम में, मैं किसी इंसिडेंट की बात नहीं कर रहा, पूरे गेम में हाउ ही वाज ऑन द बॉल, इट इज अंडररेटेड क्वालिटी. बट आई थिंक डिफेंसिवली
आई थिंक वी नीड टू वॉच हिम। जो Yeah. फर्स्ट गोल के बारे में तूने बात किया, अब नॉट ओनली द फर्स्ट गोल, सेविन्यो वाज हैविंग द टाइम, मतलब सेविन्यो किसी को भी कटा सकता है। उसने कुकुरेला की गांड फाड़ दी थी, मुझे अच्छे से याद है फर्स्ट मैच में। कुकुरेला को मतलब विंग्स में वो कटा रहा था, एक शोल्डर ड्रॉप करके वो सीधा निकल जा रहा था, आगे वाला शोल्डर ड्रॉप करके वो अंदर कटा ले रहा था। को है नो आइडिया, क्योंकि उसको पता नहीं चल रहा था मुझे क्या करना चाहिए। काले फिरू के केस में जो सेविन्यो saw the space in the middle कि nobody was Yeah. covering that space, probably midfielder, क्योंकि तुम्हारा पार्टे स्लो है, पार्टे का मतलब पहले से लग गया था ही स्लो स्लो तो स्लो। पार्टी को देखेगा, पार्टी एकदम कैलिफोर्निया के हाँ बाजू में ही रहता है उस वाले पास में। एग्जैक्टली, और डेक्लन राइस थोड़ा सा आगे था उसमें, हाँ। उस वे में उस टाइम डेक्लन राइस थोड़ा सा आगे चला मार्टिनेली गया भी था, ट्रैक बैक नहीं कर सकता क्योंकि सविनियो के पेस बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा है। तो सेविन्यो के पास बहुत बहुत सेक्सी चांस आया कि अंदर कटाने का, एंड ही डिड दैट, एंड सेविन्यो से हम है। एक्सपेक्ट एंड भी गुड करते रन हैं। फ्रॉम हालैंड एज वेल। या हम ये चीज बर्नार्डो सिल्वा से एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, हाँ। जिसको हम पेप के बारे में बोलेंगे कि Yeah. हाउ डिड यू, मतलब टेररिस्ट फुटबॉल में तुम बर्नार्डो सिल्वा को कैसे पिच पे रख सकते हो, एंड यू आर टेकिंग ऑफ सेविन्यो। तुम्हें पता है सेविन्यो कटा सकता है, पर लेट्स सी, पर सेविन्यो से हम एक्सपेक्ट करते हैं, बर्नार्डो सिल्वा से एक्सपेक्ट नहीं करेंगे हम जो Yeah. उसने किया। बर्नार्डो सिल्वा तो आज तो पूरा एटलीस्ट सीडीएम में नहीं, वो सीबीएम खेल रहा था, सेंटर Yeah. बैक खेल रहा था वो तो बिल्कुल ही। तो वंडरफुल पास, वंडरफुल, मतलब उसने जैसे टच लिया ना, उसने बंदे ने ऊपर देखा। अच्छे ड्रिबलर्स और अच्छे मतलब प्लेयर्स की यही बात होती है, जो डिसीजन मेकर्स होते हैं ना ड्रिबलिंग के साथ साथ, वो सबसे पहले कटा के ऊपर देखते हैं। डोकू ने आज तक ऊपर नहीं देखा होगा, उसकी जुल्फे सामने आ जाती है, उसने आज तक ऊपर नहीं देखा होगा कटा के, आज पूरे मैच में दिख गया हमें। पर जैसे ही उसने कटाया, गैब्रियल का ये था कि फर्स्ट ही अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द बॉल, गैब्रियल है ना बॉल की तरफ थोड़ा अट्रैक्ट हो गया कि मैं पास को कटा सकता हूं, but he then gave a huge space and wonderful outside of the finish, instinctive finish by Haaland. बिल्कुल, मतलब you expect this from Haaland. Yeah. पर आगे, एंड एट दैट टाइम सिटी वर डोमिनेटिंग द बॉल, Yeah. सिटी के पास चांसेस भी आ रहे थे, उससे पहले भी एक चांस आया था सिटी के पास, हाफ चांस बोल सकते हैं, पर एक चांस गुंडोगान आया था वाला। उसका, हाँ गुंडोगान वाला। पर लेकिन तब तक सिटी पूरा डोमिनेट कर रही थी और पूरा मैच अच्छा चल रहा था, मतलब फ्रॉम द सिटीज पर्सपेक्टिव। और आर्सेनल का देख के यही लग रहा था द ओनली वे दे कैन स्कोर इज द सेट पीस, Yeah. वही लग रहा था कि द ओनली वे दे कैन स्कोर इज सेट पीस, एंड देन द डिजास्टर स्ट्रक ऑफ माइकल ओलिवर। Yeah. I mean, this is one of Yeah, the Dinesh, again. yeah, Dinesh, biggest- that's what, yeah, Yeah. I'll start. मैं बोल रहा हूँ कि है ना, first you give your thoughts on that, and Yeah. then I'll counter that, or मतलब or I will support that whatever you are saying. Yeah. उसमें So what your first thoughts of on all, that? First so of my thoughts has always been the same since the start. Michael Oliver is a disgrace of a referee. yeah, Joe, I think he did not gift us a goal, but I would say he facilitated for us to be a goal because Pre-assist. he made the wrong decision in which he called up Walker and he sent Walker off. I'm not saying Walker को उसने भेजा नहीं और Walker की वजह से गोल हुआ, right? Walker was not ready. I'm not saying. The whole team of Manchester City were basically discussing within themselves. हाँ, और क्यों ये डिस्कशन हुआ था? क्योंकि ये माइकल ऑलिवर ने बुलाया था। और जब काइल वॉकर बोल रहा था, ही वेंट टू हिज डिफेंस लाइन, उसने पेप गार्डियोला वहाँ से चिल्ला रहा है मार्टिनेली को खींच, मार्टिनेली को खींच, मार्टिनेली को खींच। अगर काइल वॉकर को देखेगा, ही ग्लैंस्ड एट मार्टिनेली क्योंकि पेप गार्डियोला चिल्ला रहा है, क्योंकि पेप गार्डियोला 2-3 स्टेप्स अहेड है भाई। वो बंदा मतलब वो चूतिया नहीं है, पेप गार्डियोला ही इज अहेड ऑफ द गेम। जब सारे प्लेयर्स बैठ के सुट्टा मार रहे हैं मैन सिटी वाले, पेप गार्डियोला को पहले ही पता था कि वहाँ भाई पूरा स्पेस खाली है, उसने ऐसे ग्लांस किया बट उसने भाव नहीं दिया। क्यों भाव नहीं दिया? क्योंकि उसको लग रहा था कि माइकल ओलिवर रीसेट करने का टाइम दे रहा था। उसी टाइम क्या हुआ, बॉल ड्रॉप किया, क्योंकि साका को देखोगे, साका वाज आल्सो इन्वॉल्वड इन दैट डिसीजन। साका वाज बेसिकली लिटरली स्टैंडिंग बिसाइड द बॉल। कैप्टन था ना साका। हाँ एग्जैक्टली ना, तो मतलब जब बॉल ड्रॉप किया और मतलब रीसेट हुआ ना, तो मतलब काइल वॉकर एटलीस्ट थोड़ा ट्रैक बैक किया पीछे, बट साका तो बिल्कुल भी वहीं था क्योंकि वो भी डिस्कशन में इन्वॉल्व था। और जैसे ही बॉल ड्रॉप किया, आई थिंक पार्टे प्लेड एन बॉल, बट ड्यूरिंग एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ मैच वी वर लाइक व्हाट इज गोइंग ऑन, राइट? क्यों ये चल रहा है, मतलब ये क्या चल रहा है? क्योंकि वॉकर क्यों चिल्ला रहा है ऐसे, किसी को पता नहीं है वॉकर क्यों चिल्ला रहा है। बट वॉकर कवर्ड हिज स्पेस, ही रैन बैक एंड कवर्ड हिज स्पेस, but what happened was Savinho was not also dragged into Walker क्योंकि उसको लगा कि मार्टिनेली उसको उस तरफ अंदर बीट करेगा, but Martinelli played a cut backing pass to Calafiori and Calafiori was in acres of case। और उस छक्कपने में भी माइकल ओलिवर ऑलमोस्ट भिड़ गया था कैलाफियोरी से, पास ऑलमोस्ट उसने कैलाफियोरी ने थोड़ा सा, अच्छा हाँ वो उसके बाजू में था, हाँ उसके बाजू में था, तो माइकल ओलिवर ने ऐसे किया और कैलाफियोरी इज स्ट्राइक। सो कैलाफियोरी को राइट साइड जाना ही था ना, क्योंकि उसको वो वाला बेंड लेना था ऊपर वाला। हाँ एग्जैक्टली, तो मतलब राइट साइड झुकना ही था। हाँ झुकना ही था, बट वो मतलब माइकल ओलिवर ने थोड़ा बहुत उसको शिमी किया, बट इन अ होल ऑफ सेंस द कॉन्वर्सेशन वाज गोइंग
सेंस माइकल ओलिवर वाज कि काइल वॉकर कुछ कर सकता है, राइट? अगर माइकल ओलिवर ने पहले ही भेज दिया था, काइल वॉकर कुछ कर सकता है। मैं बोल रहा हूँ काइल वॉकर कुछ नहीं कर सकता था। मे बी टीम, point मे बी is, द टीम फ्रॉम मैनचेस्टर सिटी, जो टीम है, दे कुड हैव स्टॉप्ड एटलीस्ट मैनचेस्टर सिटी टू प्रेस। मे बी मतलब मे बी मार्टिनेली कुड नॉट हैव रन, राइट? सो ये हो सकता था, बट इट वाज नॉट somebody could have closed off Kala Fury. exactly. It was not Closed down, because sorry, of closed down. Kyle Walker not tracking Martinelli. It was basically the team was inactive mode, and that inactive mode was because of the direct action created by the referee. So I am blaming it on the referee. I am not putting it on the. I'm not putting out on one single person, which is Kyle Walker or referee. I am putting on the referee ही पूरा ही मैं डाल रहा हूँ blame. इसमें मैं पूरा Exactly, मैन सिटी exactly. ब्लेम डाल रहा हूँ और रेफरी वाला ब्लेम डाल रहा हूँ। एक चीज और तू मिस कर गया, वन थिंग बट पेप गार्डियोला को तूने देखा होगा, ही वाज पॉइंटिंग आउट नहीं टू नहीं, वो काइल वॉकर। परफेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम इतने बड़े छक्के हो रेफरी कि मतलब तुम है ना एक फाउल के लिए तुम बुलाते हो कैप्टन्स को, क्योंकि बहुत स्पाइसी हो रहा था। आई अंडरस्टैंड दैट कन्वर्सेशन। आई अंडरस्टैंड कि मैं बुला रहे हो, तुम बुला रहे हो, पर देन एटलीस्ट गिव द टाइम बैक टू सेटल द टीम बैक। पूरा का पूरा टीम से बिल्कुल सेटल ही नहीं था, 1% सेटल नहीं था। तुमने कितनी बार देखा है कि जब तुम है ना जल्दी से रेफरी बजाता है और तुम जल्दी से क्विक फ्री किक ले लेते हो, रेफरी ऑलवेज कॉल्स द बॉल बैक कि हाँ तुमने बहुत, कितनी बार हुआ है, वेट हाँ, जल्दी कितनी बार हुआ है, कितने मैचेस में कितनी बार हुआ है, हमने लाखों बार देखा है वो अभी तक, जो रेफरी कॉल बैक कर लेता है, और हर मैच में प्रॉब्लम एक बार तो होता ही होगा वो चीज, मिनिमम टू मिनिमम। तो ही वाज अ डिसग्रेस एंड डिसग्रेस ऑफ ए रेफरी, और इस रेफरी को पता है बेस्ट इंग्लिश रेफरी बोलते हैं, है ना? इसको इंग्लिश मीडिया और इंग्लिश जो एफए है ना, हर जगह तुम्हें मतलब अपना एक वो भेजना होता है ना रिप्रेजेंटेटिव, कि इंग्लिश रेफ्स के लिए रिप्रेजेंटेटिव कौन जाएगा यूएफए फीफा या पे जहां भी बकचोदी करने, तुम ये माइकल ओलिवर और ये टकले को भेजते हैं, दूसरा वो कौन है, एंथनी टेलर, एंड दे आर द बिगेस्ट don't lack of any word. I think look at the quality of the players we had in the pitch, right? This and conversation should have been between Pep versus Arteta, Man City versus Arsenal, Trossard versus Haaland. मतलब हावर्ट्ज मतलब ये इतना मैच इतना ताजुक बन रहा था यार फैंस के लिए। और सेकंड चीज जो तूने दिनेश नहीं बोली इस डिसीजन के बारे में, कि जहां से पार्टे ने बॉल लिया ना और जहां पे फाउल हुआ था, देयर वर 12 yards ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैट। एग्जैक्टली किसी ने रेफ बताया था, मतलब आफ्टर मैच जो पोस्ट रिव्यू मैच होता है जो करते हैं पंडित लोग वगैरह प्रीमियर लीग वाले शो उस पे चैनल पे, कि 11-12 यार्ड्स का डिफरेंस है जहां से बॉल शुरू हुआ और जहां से बॉल ने फ्री किक लिया। तो वैसे तो तुम थ्रो इन के लिए बैच जो बच्चों को पीछे भेज देते हो कि यहाँ से नहीं कर सकते, यहाँ से नहीं कर सकते, उसके लिए तुम टाइम वेस्ट के लिए कर देते हो, पूरा येलो कार्ड दिखा देते हो सबको, पर यहाँ पे तुम 12 यार्ड बॉल दूर थी, और फर्स्ट ऑफ ऑल 12 यार्ड बॉल तुम अलाउ भी कर देते हो अनलेस इट्स अ पैरेलल पास और इट्स अ बैक पास। जब तुम बैक पास कर रहे हो तो तुम थोड़ा डिस्टेंस अलाउ भी कर देते हो। तो 1-on-1 थ्रू बॉल के लिए जो तुमने अर्ली स्टार्ट दे दिया है, उसके लिए यू कांट अलाउ दैट। तुम्हारा मतलब, एंड उसके बाद कोई वार में उसको बोल भी नहीं रहा है भाई कि तूने गलत अलाउ कर दिया, कॉल द बैक बॉल पे। दे आर मतलब सबसर्विएंट बंदे होते हैं ना बिल्कुल, कि माइकल ओलिवर बिल्कुल। तूने डेक्लन राइस वाला तूने रेड कार्ड में का ऑडियो देखा? तूने सही, ये तूने बहुत सही शब्द बोला, सबसर्विएंट। तूने अगले डेक्लन राइस वाला तूने ऑडियो देखा होगा, उसमें ऐसे एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। ओह नाइस जॉब मेट, नाइस जॉब मेट, या मैट, आई अंडरस्टैंड मैट, यू हैड टू गिव इट मैट। नाइस जॉब मेट तो उसने तब भी बोला था जब वो टॉटनम ने लिवरपूल वाला गोल हो गया था, उस वाले में भी बोल रहा था या वंडरफुल जॉब मेट, वंडरफुल जॉब मेट। ही इज ऑन द सेकंड येलो, ही वो बोलता है ही इज अ कॉशन मैन, ही इज ऑन द सेकंड येलो, इट डजंट मैटर। वो गोल ऑफसाइड वाला, हां वो गोल ऑफसाइड वाला, हां लिवरपूल वाला ना, हां उसमें जब गोल दे दिया ना कि हां वो, तब उसके बाद वेल डन, ओ सॉरी इट शुडंट बीन अलाउड। आई मीन इट जस्ट टेक्स, I mean, Michael Oliver could have literally, मतलब इतना भी वो फास्ट नहीं हुआ जब थॉमस पार्टे ने प्लेड द बॉल ओवर काइल वॉकर, ही कुड हैव वहीं पे सिटी बजा सकता था। ये कोई डिसग्रेस ऑफ डिसीजन नहीं है। इवन आर्सेनल फैंस वुड हैव अंडरस्टूड, ओके जल्दी, ये तो बहुत बार गेम्स में देखा है, इट ऑलवेज हैपेंस कि रेफरी हमेशा जब उसकी जगह से नहीं लेता तो रेफरी बोलता है कि भाई रुक जा, फिर वो लेता है। बट आई थिंक दिस कुड हैव बीन कंप्लीटली अवॉइडेड, बट आई एम सेइंग इट्स नॉट बेसिक। काइल वॉकर की गलती तो है क्योंकि उसने अपना काम नहीं किया, क्योंकि पेप गार्डियोला बोल रहा था, बट आई थिंक द होल मैन सिटीज टीम वाज इनएक्टिव बिकॉज़ ऑफ दिस गाय। आई थिंक वो तो समझ रहा है ना।
गोल तो मैं वो समझ रहा हूँ कि इट वाज, मैं वो तेरी बात को मतलब और एक पॉइंट आगे बढ़ा के बोल देता हूँ कि गोल रेफरी की वजह से नहीं हुआ है, हाँ गोल वंडर स्ट्राइक की वजह से हुआ है. Nobody would have stopped that. The only thing that could have been कि somebody would have closed them down, closed Calafiori down. सिर्फ यही हो सकता था, वो नहीं हुआ. पर जो स्ट्राइक थी वो वंडर स्ट्राइक थी. काइल वॉकर की उसमें कुछ गलती नहीं है, डियाज की उसमें कोई गलती नहीं है, एडरसन की कोई गलती नहीं है. yeah The only point is game should have had been started at that point. yeah वहीं exactly पे कि तुम्हारा इनिशियल पॉइंट जब खराब है तो तुम उसके आगे कुछ भी रायता बना लो, yeah वो सब खराब ही होने वाला yeah है. एंड दिस लीड टू द गिल्टी माइंड फ्रेम ऑफ ए रेफरी, जो सब चीज के हाँ साथ होता है, हाँ जो सब बोलते हैं ना, ये जो सब हमेशा बोलते होता हैं है, हमेशा होता है. हाँ, मैं इसका एग्जांपल भी मैं बता दूंगा तेरे को. एक वो ये सब बोलते हैं ना कि है ना, Even out. ईच डिसीजन इज इंडिविजुअल डिसीजन Hmm. एंड टू रॉन्ग्स कांट मेक इट राइट. वैसा वाला Yeah. जो उल्टे सीधे जितने भी ये पेडेंटिक्स और सिमेंटिक्स बोलते हैं ना फुटबॉल में, दे आर एब्सोल्युटली कि सब पूरा गिल्टी माइंड फ्रेम आ जाता है. हाँ. और उसका सबसे सबसे बड़ा एग्जांपल है वो क्लेटनबर्ग बंदा. Hmm. क्लेटनबर्ग बंदे ने अपने एक इंटरव्यू में एक्सेप्ट किया था कि जब वो मैड्रिड वाला गोल उसने दे दिया था फाइनल में, एथलेटिको हाँ. मैड्रिड वर्सेस वो गोल हुआ था, क्या हाँ. बोलते हैं, रियल मैड्रिड वाला, और जो रोनाल्डो ने गोल मारा था पहला, वो ऑफसाइड गोल था वो. ठीक है, तो इसके लिए बोलता है कि हाँ आई सॉ द ऑफसाइड, बट उस बंदे ने ऑफसाइड नहीं दिया जो लाइंसमैन है, तो मैं भी क्या कर सकता हूँ उसमें, क्योंकि वो काम स्पेसिफिकली लाइंसमैन का ही है, रेफरी ऑफसाइड नहीं दे सकता है. ठीक है, तो मैंने उसको बैलेंस आउट करने के लिए एथलेटिको को पेनल्टी दिया, हाँ पर वो ग्रीजमैन चूतिया था जो मिस कर गया. ठीक है, याद है ना? हाँ याद है. तो हमारा जो ग्रीजमैन कॉलेज वाला, नहीं कॉलेज नहीं, मतलब कॉलेज मतलब आफ्टर वर्क, मतलब थोड़े पा कमाना. हाँ चेनेडिस या. हाँ, तो मैं वही बता रहा हूँ कि क्लेटनबर्ग ने अपने एक इंटरव्यू में एक्सेप्ट किया कि दैट्स व्हाई आई गिव द पेनल्टी. तो सेकंड चीज, माइकल ओलिवर पूरे वो स्टांस में आ ही गया था कि आर्सेनल को कुछ भी होगा ना, आई विल नॉट फेवर देम. Yeah. बिल्कुल लेटर ऑफ द लॉ उन पे अब लगाना पड़ेगा मुझे. yeah बिल्कुल आई विल नॉट बी फेवरिंग देम, वो उसके माइंडसेट में आ गया था. yeah एंड इज अगेन डिसग्रेस ऑफ ए डिसीजन, क्योंकि तुम हर किक को तो तुम नहीं दे रहे हो फॉल, वो येलो कार्ड. So बहुत सारी let's किक्स talk थे. about the next phase मैं of the play, right? Next phase ये- तो हो चुका है ना. Next phase तो गैब्रियल वाला गोल था. Next, so मतलब first hats of Calafiori. उसके नहीं एक सेकंड बस, एक सेकंड, वो गैब्रियल वाले हेड्स ऑफ द कॉलिफेरी जेम ऑफ ए फिनिश. मतलब what a way to announce that I am there in the Premier League. Yeah, but he has to be. I need to say more. Yeah. On the ball, मैंने इतना मतलब एक गेम से I can judge, एक चीज जज कर सकता हूँ. He is good on the ball. He will go forward. भाई बहुत वो अच्छा सेंटर करेगा. बैक खेलते हुए आ रहा है, then he has to transition bro left back. He is a proper ball playing center back. जो बस्टोनी करता है ना, जो बनुची था एक्चुअली, बनुची जो बंदा था ना, वो बंदा वो चीज कर सकता है कालोफेरी. ही इज अ प्रॉपर बॉल प्लेइंग सेंटर बैक, पूरा बॉल पे उसका कंट्रोल, इज अ फुटबॉलर बेसिकली. ठीक है, लेकिन डिफेंसिवली आई एम नॉट श्योर. एक बंदे एक बार ट्विटर पे वो कर रहा था कि ही इज डैन बनुची. I think डैन, क्योंकि डैन बन भी लेफ्ट बैक खेल रहा है ना न्यूकैसल में, इसलिए दैट्स द कोरिलेशन. डैन बनुची bro, it's a high pressure game. बट First, ये नहीं, मैं एक सेकंड दिनेश, बस लास्ट पॉइंट मेरा, मैं ये नहीं बोल रहा कालाफियोरी के बारे में कि आई हैव नॉट मेड अप माय माइंड. आई हैव मेड अप माय माइंड अबाउट कालाफियोरी कि ही इज गुड ऑन द बॉल, है ना, अच्छा बॉल है, अच्छा गुड स्ट्राइकर ऑफ द बॉल, आल्सो प्रोबब्ली गार्डियोल लेवल. गार्डियोल जो करता है ना सिटी में वो कर सकता है, पर गार्डियोल का आई नो कि ही इज डिफेंसिवली एस्ट्यूट आल्सो. दैट थिंग ही नीड्स टू प्रूव इन द नेक्स्ट 3-4 गेम्स जितना देखना है. दैट्स द ओनली पॉइंट. Yeah, he needs a decent enough start first of all. But मतलब one thing which I want to rebound is कि Calafiori का job यही था कि just prevent Savinho or Bernardo Silva or anyone to cross their defensive line अंदर, मतलब सॉरी बाहर, मतलब अंदर खींच के मत आना. यू कैन ड्रैग बैक, यू कैन प्ले दिस, मतलब जो फर्स्ट टच लेके अंदर कट बैक कर सकते हो, ये सब तुम कर सकते हो. क्योंकि आर्टेटा ने बोल दिया क्योंकि मार्टिनेली का काम है वो मार्टिनेली करेगा. तो इसलिए तूने बहुत बार देखा होगा, आई थिंक देयर वर मेनी टाइम्स वेयर सविनियो वाज एबल टू बीट हिम जस्ट कटिंग इनसाइड but not running through him. When he tried running through him, I think Calafiori almost prevented almost one time. Maybe उसने एक बार उसने जोड़ा था, दूसरी बार उसने वापस I think he won the ball. He didn't set him on the floor. Savinio ने set him on the floor नहीं किया, लेकिन but he was just a step ahead of. क्योंकि वो हमेशा एक बार एक पाथ होता है, हमेशा अंदर काटने का तो हमेशा एक पाथ होता ही है. नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि बस he was just a step ahead of Calafiori, वो वाली बात है बस. I think he's a smart enough player. I think he's a bowler as well. और वो बंदा वो चीज किसी के साथ भी कर सकता है. Exactly. हाँ, इसलिए मैं अभी भी जज नहीं कर रहा हूँ Calafiori को. लेट्स सी कि आगे जाके क्या करता है. एग्जैक्टली, प्लेयर प्रोफाइल का ऐसा है कि उसका प्लेयर वो हमेशा, अगर वो बाहर की तरफ नहीं गया,
बिकॉज डिफेंडर हमेशा पोजीशन ऐसा रखता है, तो उसको पता है कि वो बाहर की तरफ अंदर जा नहीं सकता, तो वो क्या करता है, ही कट बैक्स इनसाइड, वो ट्रैक बैक करते 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 आएगा, राइट. ओके, लेट्स मूव टू द गैब्रियल गोल. मतलब सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स. उससे पहले एक और कॉर्नर, what a wonderful corner again by Saka. He should have scored. Who was marking Gabriel? Jeremy Doku. Jeremy Doku को उसने पकड़ के फेंक के वो गया, फिर वो then comes the Kyle Walker गुरुजी. गुरुजी ने बोला मैं करता हूँ. हाँ, उसने बोला डॉग तू हट भूसने के, मैं करता हूँ. And I don't know what he was doing. It was so funny. मतलब basics of defending शायद वो भूल गया या something made up his mind because of the pressure of the game. He's done. भाई वो पता है देखा क्या कर रहा था वो गैब्रियल को? छू रहा था बार-बार. Feeling him. He was feeling him. Why bro? You can see him, right? See him and track back. जैसे वो feel कर रहा था, तो गैब्रियल समझ गया तो कुछ भी नहीं कर रहा यार. तेरे को बॉल देखने की जरूरत ही नहीं है, जस्ट सी गैब्रियल को कूदने बदले बस उसको बस अड़ा के रख उसमें. एग्जैक्टली. ना उसने दोनों को नहीं देखा, ना बॉल को देखा ना गैब्रियल को देखा. और उसने क्या देखा, उसने अपने आप को बस देखा कि मैं कहाँ पे हूँ, और तब तक गैब्रियल निकल भी चुका था. और जैसे ही निकल रहा था, व्हाट अ डिलीवरी, पीच ऑफ अ डिलीवरी फ्रॉम साका भाई. ये मतलब इट्स वन ऑफ द, मतलब साका ओके ही इज नाउ यू कैन से ही स्टैट पैडिंग, बट बिकॉज ऑफ the 2 corner goals, because अपना जो सेट पीस है इट्स रिलायंट ऑन हाउ यू पुट द बॉल्स, क्योंकि प्रेशर आ रहा है गोलकीपर को कूदने का भी टाइम नहीं है, इतना विप्ड इन डिलीवरी है. एक चीज मैं बोलूंगा कि पिछला वाला जो गोल था ना विकारियो के अगेंस्ट, जो टॉटनहम के अगेंस्ट मारा था, दैट वाज अ वंडरफुल बॉल. पर आई वुडंट काउंट इट, मतलब ऐसे असिस्ट में काउंट, मतलब असिस्ट तो है वो, मैं ये नहीं बोल रहा उसमें मैं, पर स्टैट पैडिंग वाले कॉलम में उसको डाल सकते हैं पिछले वाले को, क्योंकि विकारियो कभी बॉल आगे कलेक्ट करने आता भी नहीं है, वी नो दैट. लेकिन ये वाला जो आज साका की दोनों कॉर्नर्स में दोनों खतरनाक डिलीवरी, दिस वाज अ प्रॉपर असिस्ट. इसको मैं प्रॉपर असिस्ट बोलूंगा, इसको मैं स्टैट पैड वाले कॉर्नर में नहीं डालूंगा. क्या विप किया था भाई उसने. यस एग्जैक्टली, बिकॉज एडरसन आगे आया था इसमें. एडरसन ऐसा नहीं है कि आगे नहीं आया था, बट ये वाली बॉल है ना इतनी परफेक्ट थी ना कि ये एडरसन के ऊपर से गई है. एडरसन डिडंट हैव एनी चांस टू सी द बॉल और मतलब कलेक्ट द बॉल. एडरसन के पास 1% चांस नहीं था आगे आने का. सब ब्लेम कर सकते थे विकारियो आगे नहीं आया पिछले मैच में. ही कुड हैव कलेक्टेड इट, क्योंकि वो सेंटर ऑफ द बॉल था, सेंटर ऑफ द डी था वो वाला, मतलब वो ये तो फार पोस्ट 6 यार्ड बॉक्स बेसिकली उसका सेंटर था वो. पर ये वाला बॉल एडरसन अगर आगे आया भी होता, अगर वो आया भी था आगे, मिस कर लेता, वो couldn't have corrected, क्योंकि उसके हाथों के ऊपर की रेंज से बॉल गई है और उसके बाद डिप करी है बॉल. एंड उसके बाद गैब्रियल हैड अ वंडरफुल लीप, और उसने, क्योंकि वो बॉल है ना, तुम नोटिस करेगा कालिफियोरी मिस्ड इट, क्योंकि कालिफियोरी भी अच्छा कूदा था उसमें, और कालिफियोरी के पास भी नहीं आया बेसिकली. पर सब लोग बोल रहे हैं कि डिफ्लेक्टेड हुआ मार्टिनेली से, तो साका का शायद असिस्ट नहीं है. अच्छा, मतलब नहीं हो सकता है, मतलब ओके उसका स्टैट्स निकल सकता है, बट बेसिकली अगर तूने सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स अगर देखोगे ना गाइस, ही मतलब गैब्रियल बेसिकली पहले जाता है कैलिफरी के पास, कुछ बात करता है कि मैं यहाँ से 1 रन लूँगा. ही टॉक्स टू हिम, दिस इज व्हाट द सीक्वेंस. एज सून एज द कॉर्नर कम्स, गैब्रियल बेसिकली गोज टू एंड टॉक्स विद कैलिफरी को बोलता है भाई यहाँ पे वहाँ पे ऐसा कुछ बोलता है. We don't know exactly what he said, and then he basically has the same strategy where Gabriel is the only one attacking, and basically all of Arsenal attackers are queued up in the far post. मतलब 5-6-7 लोग फार पोस्ट में, सिर्फ एक बंदा गैब्रियल बीच में. यही था स्ट्रेटजी. एंड ऑफ कोर्स काइल वॉकर लॉस्ट इट, एंड पाल ने बोला था कैलिफरी ऑलमोस्ट हेडेड इट. दिस कुड हैव बीन सॉर्ट ऑफ अ डिस्ट्रैक्शन, एंड बेसिकली इट वाज अ टावरिंग हेडर. नो वन कुड हैव चैलेंज्ड गैब्रियल, एंड ऑलमोस्ट बॉल भी इनसाइड ऑफ द कर्ल, मतलब कहीं भी लग के बॉल अंदर ही जाती है. अगर डिफेंडर को भी इतना मतलब इतना विप्ड इन डिलीवरी में वो करने की कोशिश करता है, यू वुड हैव बीन एन ओन गोल. बट या आई मीन बट this was wonderful. And Arsenal during that point, before that Gabriel goal, Arsenal started dominating. We started Arsenal grew into the game. Grew into the game. We started creating chances. We started popping it around also. In and around फिर हम लोग जा रहे थे उनके बैक 3 के पास तक जा रहे थे. And City basically सोच रहे थे कि it's now our time to defend. तो वो लोग पीछे चले गए, और सिटी मिड ब्लॉक में आ गई थी उस टाइम. मिड ब्लॉक में आ गई थी. एंड देन वही मैं बताना चाह रहा हूँ, जेरेमी डोकू इंसिडेंट, जिसने लात मारा था, उसके लिए ओलिवर बोलता है भाई है पहले ही था क्या?
जेरेमी डोको वाला तो इंसिडेंट बोल रहे हैं ना, आई थिंक दैट वाज नॉट अ येलो कार्ड, वो करेक्ट था, वो करेक्ट था, वो येलो कार्ड नहीं था, क्योंकि उसमें रेफरी बोल रहा था कि तुम पीछे से लो, वो वाला नहीं था कि वहां से फ्री किक नहीं ले रहा था, जहां पे वो बॉल थी ना वहां से फ्री किक नहीं ले रहा था रेफरी, और गुंडोगान भी बोल रहा था उससे, तू देखेगा कि वहां बॉल दे पीछे है, तो जेरेमी डोको ने बस पास दिया था। पर बट एक वो और वो अभी फर्क नहीं पड़ता ना यार, तू बॉल को आगे लगा भी सकता है नहीं ना। नहीं अभी नहीं जैसे नहीं पर जैसे डेक्लन राइस को कैसे रेड किया, जहां पे फाउल किया था वहां से तो उसने लिया नहीं, उसने बॉल आगे फेंका था ना। नहीं नहीं नहीं, पर रेफरी ने उसको बोला था वहां पे बॉल के नहीं, लिए। बॉल उसने बोला नहीं, जब उसने माना तब लोगों ने बोला कि बॉल पीछे हाँ ले पीछे ले, तब हाँ, तो पर सब ने। दैट वी कैन अंडरस्टैंड, लेकिन हाँ बर्नार्डो सिल्वा का एक था जो बर्नार्डो सिल्वा ने मारा था, हाँ, बॉलर वो से येलो लात था। मारा था, उसको भी येलो हाँ देना था। वो बर्नार्डो सिल्वा वाला और रूबन एब्सोल्यूट येलो डियास था। जब गोल, रूबन डियास तो आके वैसे छत फुला रहा था, तब क्या हुआ था, हाँ जब लड़ाई हो वो रही तो थी वो तब तो वो तो। कभी सेकंड येलो देते ही नहीं, तो याद है ना हाँ कोलविल वाला, कोलविल ने एंथोनी टेलर के चेहरे पे थूक दिया था, हाँ तब भी उसने सेकंड येलो नहीं दिया, क्योंकि वो इतना तेज बोला था यू आर पीस ऑफ शिट, तो थूकना निकल ही रहा था उसके मुंह से। बट लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि अगर 1-1 होता ना, आई थिंक अगर ये गेम 1-1 होता और वो फाउल हुआ होता, तो वो आई थिंक वो बंदा जो है ओलिवर कान नहीं, ओलिवर कान नहीं, माइकल ओलिवर, माइकल वो बंदा रुक जाता, हाँ ही कुडंट हैव कर ले लो। लेकिन एग्जैक्टली। जैसे ही दूसरा गोल चला गया ना, उसकी हाँ गिल्ट ट्रिप और बढ़ गई, हाँ, उसकी उस मेरे वजह बंदे से की भैंचो सिटी चुद रहा है। सिटी चुद रहा है, क्योंकि उसने पिछले मैच में मेरे को याद है लास्ट ईयर उसने कोवाचिच के 2 रेड कार्ड, हाँ, क्लियर उसने रेड क्या कार्ड बोला लेके। था, उसने क्या बोला था याद है पाल, कि हम्म। आई एम टेकिंग द मेच्योर डिसीजन, कि मेरे को गेम हाँ चलाना है, ये बोल के हाँ एंकल ब्रेकर, हाँ इट वाज ए इंसिडेंट ऑफ हाँ, एंकल ब्रेकिंग, उसको उसने रेड नहीं दिया बिकॉज उसको गेम चलाना था। एंकल इसलिए ब्रेक मैं तो बोल रहा हटा हूँ दे, कि ये डिसीजन बहुत मेरे को हार्श लग रहा है। एंकल ब्रेकर तो हटा दे, उसके बाद कोवाचिच ने फर्स्ट येलो के बाद एक सेकंड येलो फाउल भी, मतलब हाँ कर एब्सोल्यूट दिया जो था, येलो था वो भी किया 2 था। रेड मिलना चाहिए तब था, 3 रेड मिलना चाहिए था हाँ उसको। तीन, 2 रेड तो मिली, 3 येलो 2 रेड हाँ वैसा। हाँ एग्जैक्टली। हाँ उसको वैसा तब भी इसने नहीं दिया उस बंदे ने, तो वो क्योंकि मेरे को पता है। क्योंकि उसने आफ्टर द हाँ गेम बोला था, कि उसी ने हाँ बोला था कि आई वांटेड एंड टू गो, मेरे को गेम देखना है, और सबसे बड़ा डिसग्रेस ही है ये पीजीएमओएल का, जो हम जो भी है बहनचो उनका क्योंकि खाली लेटर ऑफ द कि लॉ आ जाता है इस टाइम। नहीं लेटरल होता कि क्या माचदा ने लेटरल होता, हर गया गांड बनाने। दूसरी चीज है कि बैचो तुमने इतनी बड़ी गलती करी पिछले मैच में और सेम मैच में, या एंड स्टिल यू हैव गिवन द गेम अगेन या नेक्स्ट ईयर। तुम या सेम तरीके से एंथोनी टेलर को बेंच चेल्सी के मैच दिए ही जा रहे हैं, वो दिए ही जा रहे हाँ हैं, 5 मैचेस में तो 2 मैच चेल्सी के एंथोनी टेलर कर चुका है, और अगर पिछला सीजन भी काउंट करें तो 6 में से 3 मैचेस वो कर चुका है एंथोनी टेलर, क्योंकि लास्ट मैच भी पिछले सीजन का एंथोनी टेलर ने रेफ किया था। तो मतलब 50% ऑफ द गेम एंथोनी टेलर बार बार आ रहा है चेल्सी के पास, माइकल ओलिवर बेंच, तुम सिटी को दिए या जा रहे हो आर्सेनल के अगेंस्ट, तो हाउ कैन। और सेकंड गोल के बाद तो भाई का गिल्ट ट्रिप ऐसा हो गया कि मतलब ही वाज या अबाउट टू लाइव डाउन, मतलब रोने वाला था वो बंदा कि भाई हाँ मेरे से क्या हो गया, मैंने क्या गलती कर हाँ दी, जैसे जैसे भाई ने डेरिवेटिव से पैसा लगा दिया और भाई हार हाँ गया उसमें हाँ, लगा के, इतना बड़ा गिल्ट ट्रिप था उस भाई को कि मैंने अपने पापा के बहन की शादी के पैसे डुबा दिए कि मेरे को ये कैसे शेख मंसूर कैसे बुलाएगा अभी वहां पे दुबई में रेफरी करने के लिए। मैं बोला कि पापा ने पैसे दिए थे कि बैंक में जाके एफडी में लगा दे, इसने बेंच स्टॉक मार्केट में लगा दिया और वो डूब गए, ऐसा वाला गिल्ट ट्रिप था उस भाई को। तो हाँ उसको वो रेड देना ही था, एंड आई थिंक वो लेटर ऑफ द लॉ लगा कि तुम रेड दे भी सकते हो, वो हाँ, I था mean, क्योंकि वो I understand. Actually, और वो कुछ भी let me tell you और about then this controversy again. एक चीज During और the commentator, जिम लास्ट बेगलिन पॉइंट, ने क्या बोला था, तूने मतलब अगर लास्ट सुना होगा पॉइंट तो। मेरे को याद है, लेकिन तू बोलिए वो, मतलब लास्ट पॉइंट पे बोल रहा हूँ कि जो मार्टिनेली का जो पुश था ना सिंपल, दैट कुड हैव आल्सो बी येलो, नॉट किकिंग द बॉल, क्योंकि वो बंदा है ना बॉल को नहीं देख रहा था, वो हाँ सीधा गया पुश करने, हाँ उसने बॉल बिन करने का ट्राई भी नहीं किया, हम्म, तो वो सिर्फ वही फाउल भी येलो दे सकते थे। हाँ पर लेकिन जब तुमने फर्स्ट फाउल बेंचो वो किकिंग द बॉल का दे दिया है हाँ मार्टिनेली, वो ट्रोसार्ड को, हाँ और वो उसने ज्यादा किक भी नहीं करी थी भाई, वो किक हाँ तो मुझे याद दिखी भी नहीं, हाँ, इट वाज नॉट इवन विजिबल टू द नेकेड आई, मतलब भाई ने बायोग्लास लगा के देखी होगी वो वाली वाले। मतलब उसने थोड़ा सा उसने टग इन किया थोड़ा सा। हाँ हाँ, तो वो इतना बड़ा भी नहीं था जो उसने किक किया था, तो तुम सेकंड येलो नहीं दे सकते वो पुश का, पर लेकिन वो उसके बाद पुश कर लेगा, उसने किक भी किया, तो मतलब देना ही था उस भाई को, गिल्ट ट्रिप भी था वो भी था, तो हाँ, वो देना ही था उस बंदे I को। mean, I think so. Apart from this, Michael Oliver bullshit. First of all, Trossard should hang his name in shame. एग्जैक्टली, कि he भैंचोद let the 2 team week down, he let the he team let the down। team down, and necessarily he put, I mean, I wouldn't say let the team down, he put too much pressure on the team. मतलब हम लोग कोस्ट कर रहे थे और सेकेंड हाफ परफेक्ट टाइम पे सेकेंड हाफ आया था कि वी जस्ट स्कोर्ड अ गोल एंड वी जस्ट गो जाके रीसेट करके आओ, सिटी हम फिर सिटी पूरा करेगी, हम लोग काउंटर पे मस्त चोट सकते हैं, यही प्लान था। आर्टेटा परफेक्ट गेम प्लान चल रहा था, एंड ट्रोसार्ड शुड हैंग हिज नेम इन द शेम। मतलब it's a very awkward stanza when two people just 2 weeks before Declan Rice को रेड कार्ड दिया है,
and then you commit the same kind of atrocity where in which you are kicking the ball. भाई तूने फाउल किया, तेरे को पता है वो फाउल है, तेरे को पता है, मतलब ये भी नहीं है कि वो 50-50 है, तेरे को पता है you barged in on Bernardo Silva. चल Bernardo Silva was making a meal out of it. It's every other challenge ऐसा ही होता है, we understand that. But आर्सेनल भी सेम करती है. आर्सेनल भी exactly right, सभी करते हैं, we understand that he was making a meal, everyone, but वो रेफरी को भी पता है he is making out a meal, और तेरे को भी पता है कि तूने फाउल किया है. इसका मतलब क्या है, चुपचाप तू या तो बॉल को ऐसे पकड़ के भी तू दे सकता था, बट यही है कि फ्रस्ट्रेशन से कर सकता था, भाई ये फाउल थोड़ी है, ये तो कर सकता है, बॉल को क्यों किया. आई थिंक दैट इज द डिस्ग्रेसफुल परफॉर्मेंस. आई थिंक मतलब जैसे सीटी बजा, इट वाज मे बी विद इन 2 seconds, जैसे सीटी बजा ही टुक द शॉट. सीटी बजने के बाद 2 सेकंड बाद, ये तो ब्रूनो फर्नांडिस ने तो सीटी बजाया नहीं, तब भी उसको येलो कार्ड दे दिया, वो तो बात अलग है. वो तो रेफरी का जो स्टेट ऑफ माइंड ऐसा रहता है कि वो लोग देर वेटिंग फॉर बेंच. ब्रो हम छोड़ यार, बेंचो अब इतना रेफ के बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं भाई. मुझे फुटबॉल देखना है यार, मेरे को प्लेयर्स का इंडिविजुअलिटी डिस्कस करना है, तेरा कटाना डिस्कस करना है, वो नटमैग मेरे को डिस्कस करना है, वो टैकल मेरे को डिस्कस करना है, और गोल लाइन क्लियरेंस डिस्कस करना है. और बेंचो में माइकल, व्हाई आई नो माइकल ओलिवर्स नेम, मेरे को उसका नाम भी नहीं पता होना चाहिए. Exactly bro, कोई भी चैंपियंस लीग बंदे को पता है क्या हम लोग? I don't know, मेरे को नहीं पता भाई. किसी का नाम नहीं पाल पता. हमने देखा था मैनचेस्टर सिटी वर्सेस इंटर मिलान, हम लोग देख रहे हैं जो रॉड्री खींच के फेंक रहा है, वो बंदा बराली खींच के फेंक रहा है, ये तो येलो ही नहीं दे रहा यार. ये तो प्रीमियर लीग में तो डबल येलो, अब तो रेड निकल जाते हैं. फिर क्यों? क्योंकि उसने गेम को कंटिन्यू किया एंड इट वाज अ ओके मैच. अगर ये रेड कार्ड होता पहले ही देता, चैंपियंस लीग में वापस वही स्टार्ट हो जाता. सेम चीज आर्सेनल में भी हुआ था. And we accepted it because जो इंटर मिलान वाला मैच जो बोल रहा है, we accepted it क्योंकि वो both sides में सेम था. Exactly. He was consistent. तुम सेम तुम पैरामीटर चाहे कोई सा भी ले लो, तुम बिल्कुल स्ट्रिक्ट पैरामीटर ले लो कि बैच तुम हल्का सा छुओगे भी तो मैं येलो दे दूंगा, ठीक है, या फिर तुम बिल्कुल लीनिएंट ले लो कि तुम टांग भी तोड़ दोगे तो भी मैं येलो नहीं दूंगा, ठीक है, बट बी कंसिस्टेंट. ऐसा नहीं कि एक टीम के लिए तुम वो कर रहे हो और एक टीम के लिए तुम वो कर रहे हो, या फिर तुम एक ही मैच में तुम ये कर रहे हो, अगले मैच में तुम चेंज कर दिया. Yeah, exactly. I think it's a disgraceful performance from the referee. Yeah, but also it's a disgrace from Trossard. But I want to just point out one controversy. क्योंकि जो हमेशा जो डिसीजन होता है वार का, ये रेफरी जब लेता है ये रेड कार्ड, मतलब this has been said by the Premier League. It's not by me. It's been said by the Premier League that on PGMOL, the first line of communication is being sent to the commentators. सो कमेंटेटर्स को पहले सेंड किया होता है कि किसके लिए वो एक्चुअली वो फाउल दिया है, या किसके लिए वो रेड कार्ड दिया है, किसके लिए वो दिया है, करके वो लोग पहले ही वो इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कमेंटेटर्स को. तो क्या हुआ, तो कमेंटेटर्स जिम बेगलिन को इन्फॉर्मेशन आ गया, एंड ऑल्सो द अदर गाय, आई थिंक द लेजेंडरी कमेंटेटर, राइट, मार्टिन टाइलर, उसको भी मिल गया, राइट. तो देन दे वर स्टार्टेड सेइंग कि I don't know why he gave the yellow. Then the information आया, yeah, I think it was because of the barge in. He barged in into Bernardo Silva. He barged into Bernardo Silva करके ये official communication आ गया था, right? Yeah. कि हम लोग को भी पता था क्योंकि उसने बोला था, जिम बेगलिन ने और मार्टिन टेलर ने बोला था. फिर जिम बेगलिन ने बोला, I think I understand, but it is harsh, right? I think it's every other tackle it's harsh. I mean, you shouldn't book another yellow for another player. Then half time के होने के बाद PGMOL पलट गया. PGMOL gave the clarity that is because of the kicking away from the ball. Foul. नहीं foul नहीं, it is because of kicking away. मतलब जो ट्रोसार्ड ने, it is not because of the foul, but in turn it was because क्यों? क्योंकि ये माइकल ओलिवर को अभी मिल गया ना ब्रो, लेटर ऑफ द लॉ वाला चीज, बहाना मिल गया अब तो, लेटर ऑफ द लॉ. अब तो सबने बोला, देख ना, आफ्टर पोस्ट मैच तुमने सुना होगा, सबने बोला इट्स लेटर ऑफ द लॉ, ट्रोसार्ड शुड नॉट गिव. अगर ये येलो होता ना उस पे, मतलब वो फाउल पे, everyone would have said it was not that much of it. तो हर मैच में होता है. Yeah, bro, let's go get away with it and let's talk about the terrorist football in the second half, the terrorist football in the second half. And Arteta made a very bold decision. He replaced Calafiori, Saka को bye bye बोल के, I think Saka was sacrificed, and he brought in then Ben White. Ben White was almost playing centre back now. 3 pairing: Ben White, Saliba, and Gabriel, Calafiori, 5-4 का combination. नहीं वो चेंज हो रहा था, वो 7-2 5-4. हाँ, they were 5-2, they were 5-4, they were 6-3, they were 7-2, they were 8-1, सब था उसमें. पर हेवर्ट्स अकेला आके था पूरा 8-1 लाइन में. That was okay. But सेकंड हाफ में मैं वहां से स्टार्ट करता हूँ. वो जैसे सेकंड हाफ स्टार्ट हुआ,
द बोल्ड डिसीजन जो आर्टेटा ने किया वो किया ही सही, पर पेप ने क्या किया ब्रो? एंड हाँ सब सोच रहे होंगे टेररिस्ट फुटबॉल बोल रहा हूँ, तो मैं आर्सेनल के बारे में बोल रहा हूँ कि आर्सेनल प्लेड द टेररिस्ट फुटबॉल। सरप्राइजिंग। नो, सरप्राइजिंग नो, आर्सेनल प्लेड द वेरी गुड फुटबॉल व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ देम। टेररिस्ट फुटबॉल कौन खेला? पेप गार्डियोला। टेररिस्ट फुटबॉल पेप गार्डियोला खेला है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो वॉकर, एब्सोल्युटली शेम ऑफ हॉल परफॉर्मेंस, बिल्कुल एब्सोल्युट डिसग्रेस परफॉर्मेंस, दोनों गोल उसी वजह से हुए, पहली बात तो। दूसरी चीज, तुमने वॉकर को क्यों रखा है भाई टीम में? एक चीज के लिए रखा है तुमने, रिकवरी पेस के लिए, पर तुम्हें उसकी जरूरत ही नहीं होनी चाहिए ना। तुम्हारे पास 10 मैन हो और तुम कंट्रोल पूरा तुम्हारे पास रहेगा ही रहेगा। एंड हु विल ब्रेक अवे? एक मार्टिनेली एक है वो जो ब्रेक अवे कर सकता है, बट वो और भी कोई ब्रेक और कोई हैवर्ट्स के पास स्पेस नहीं है, और आगे कोई भी नहीं कोई जो भी नहीं है। ब्रेक अवे, कोई भी नहीं जो ब्रेक अवे करेगा। एंड स्टिल यू डिडंट ब्रिंग रिको लुइस, यू डिडंट ब्रिंग फोर्डन, और जैक ग्रिलिश को तुम बेंचो 80th मिनट में लाते हो, जो बंदा कुछ कर सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रो, एक चीज हम बोलते हैं नाउ, आर्सेनल आई थिंक मेरे हिसाब से जो रेड कार्ड था वो थोड़ा सा मतलब उसमें सिल्वर लाइनिंग भी थी कि आर्सेनल वाज नाउ क्रिस्टल क्लियर कि अब हमें क्या करना है। उनके दिमाग में कोई डाउट ही नहीं था कि मुझे अब कुछ एक चीज अलग भी करनी है उससे। दे वर परफेक्टली 5-4-6-3-7-2 के शेप में रहेंगे, बिल्कुल नैरो। तुम्हें विंग्स पे डाल के जाके हजारों क्रॉस डाल दो। वी हैव द बेस्ट सेंटर बैक्स जिनकी हाइट है, चारों सेंटर बैक्स हैं और इनकी हाइट है। वी विल क्रॉस इन 3 आवर्स 4 आवर्स, जितने भी तुम खेलना चाहो, हम क्रॉस करते रहेंगे। आर्सेनल वर एब्सोल्यूट परफेक्ट, बिल्कुल। यू हैव टू रेस्पेक्ट आर्सेनल ब्रो, उन्होंने जो आज किया है सेकंड हाफ में, यू हैव टू रेस्पेक्ट। पर पेप ने क्या किया, और हमने लास्ट एपिसोड में जो डिस्कस किया था कि आर्सेनल पूरे सिस्टम में आ चुकी थी, दैट वाज देयर सिस्टम बिल्कुल। एंड सिस्टम को हराने के लिए, सिस्टम को पेलने के लिए, हु डू यू नीड? You need X factor players. You need the Mavericks of the game. You need who the and players they had नहीं मैं बोल रहा हूँ the players who can drop the shoulder, cut a player, बिल्कुल मतलब set a player on the ass, जिससे वो बंदा पूरा गेम से आउट हो गया, फिर तुम्हें 8 को ही कटाना है बेसिकली, ठीक है? तो वहीं पे वो चीज जो थी ना, एक बंदा नहीं था जो कर सकता था। डोकू एब्सोल्युटली गार्बेज, एब्सोल्युटली ट्रैश परफॉर्मेंस। और डोकू का सबको पता है कि वो कटा कि भाई ऊपर वो देखता ही नहीं है, वो कभी ऊपर नहीं देखता, वो उसका एंड प्रोडक्ट शिट है, वो मतलब छोटा सेंट मैक्सिमम जो भी बोल लो। और इस चैनल पे आज तक भी देख लेना, डोकू की बिल्कुल तारीफ नहीं हुई है। वो रफेल लियाओ वाली कैटेगरी में हमारे लिए स्टैंड करता है अभी भी, बेसिकली कि ड्रिबल कर लेगा लेकिन उसके बाद कुछ भी नहीं है उसके पास, दिमाग में बच्चों भूसा भरा है बेसिकली। सेकंड चीज, एक बंदा जो कटा रहा था, एक बंदे के पास जो पेस था, एक बंदा जो मतलब शोल्डर ड्रॉप करके पेल सकता था किसी को, सेविनियो भाई ने उसी को टुक ऑफ कर लिया। एक्चुअली क्यों तूने किया? क्योंकि वो बार बार ड्रैग इन कर रहा था ना, तू देखा नहीं, तू वही तो नोटिस नहीं किया। ही वाज कटिंग इनसाइड, और कटिंग इनसाइड करने से क्या हो रहा था कि पहले से बहुत लोग थे इनसाइड में ही। इनसाइड में काइल वॉकर था, इनसाइड में वो था, मतलब रूबन डियाज। दिक्कत ये है कि तुम बेंचो पिवट जो तुम बेंचो रूबन डियाज से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो बॉल प्ले करेगा। रूबन डियाज के पास ही सारे चांसेस आ रहे थे। रूबन डियाज बेंच सबसे ज्यादा टचेस उसी ने लिया है, सबसे ज्यादा शूट उसने लिए ब्रो, लेफ्ट राइट कहीं से शूट ले रहा है। कोवा शूट ले रहा है ब्रो, तुम्हें पता है कोवा जिंदगी में नहीं मार सकता है कभी भी गोल। वो सांचेज शूटिया था जिसने वो गोल खाया। कोवा का 100 शॉट में से एक जाता है। और कौन शूट ले रहा है? एकेंजी शूट ले रहा है। एक बंदा जो शूट ले सकता है वो वार्डियोल था बस, और उसने राया को मजबूर भी किया कि वो सेव करे एक दो इंस्टेंसेस पे। और डोकू अगर अंदर कटा भी रहा तो काइल वॉकर को जाना चाहिए ना पीछे, फिर कटबैक करने के लिए उसको पास देना चाहिए ना। काइल वॉकर कुछ कर ही नहीं रहा है। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, उसको हटा के तुम रिको लुइस को लाओ ना भाई, कि रिको लुइस बेंचो ओवरलैप जाके वो कट भी लेगा। तो यू नीडेड द मैवरिक्स की रिको लुइस, यू नीडेड फिल फोर्डन, और यू नीडेड जैक ग्रिलिश। द क्लोजेस्ट थिंग टू हजार्ड वी हैव इन दिस लीग नाउ इज जैक ग्रिलिश। वैसा मतलब कटाने के चक्कर में बोल रहा हूं मैं, वैसा जो स्लो पेस पे आई वुड से फाउल लेने के चक्कर में जैक ग्रिलिश और किसी चक्कर नहीं। विला वाला थोड़ा बहुत याद करोगे तो भी, विला वाले में वो वहां वो निकल जाता था क्योंकि हजार्ड वाज नॉट अ पेसी विंगर। वो स्लो मतलब ही वाज पेस था उसमें, पर वैसा नहीं था बेसिकली। हाँ, ग्रिलिश में भी वही चीज है, स्टॉप स्टार्ट वही बीटा वर्जन ऑफ वही ग्रिलिश वही। और ग्रिलिश जैसे आया उसने किया भी सही, उसने बेन वाइट को चोदा 1-2 बार, मेरे को अच्छे से याद है। उसने उसको भी पेला, टिम्बर को भी पेला 1-2 बार। और लास्ट में गोल किसकी वजह से आया? जैक ग्रिलिश। और प्रॉब्ली बेंचो। और एक और चीज, सारे के सारे चांसेस जो बेंचो जो रूबन डियाज को जा रहे थे बॉल प्ले करने के लिए, व्हाई वाजंट जॉन स्टोन्स देयर, जो तुम्हारा मतलब मेसी ऑफ द सेंटर बैक्स जिस तुम्हें बोल सकते हो, नॉट इन अ डिफेंसिव वे,
ऑन द बॉल वे। हम्म, तो मेसी होता सेंटर बैक, जो जॉन स्टोन्स है उसको तुम भेजो बिठा के रखा है और उसको तुम नहीं ला रहे हो। तो पेप वाज एब्सोल्यूट टेररिस्ट टुडे, ही वाज ओके टू लूज द मैच अंटिल ही हैज द कंट्रोल ऑफ द मैच। हम्म, बेंचो क्या गांड में डालेगा कंट्रोल, बर्नार्डो सिल्वा को खिला रहा है बेंचो, बर्नार्डो सिल्वा को कटाए हुए 15 साल हो चुके हैं। उसका लास्ट मैंने कटाना देखा था जो वो जेम्स मिलर को कटा रहा था लिवरपूल में। हाँ गैब्रियल जीसस ने तो उसको चोद के रखा था बर्नार्डो सिल्वा हाँ, को। टैकल पे टैकल, टैकल पे टैकल। या दिग्नेश, गो Yeah, अहेड ऑफ द सेकंड हाफ I ऑफ think yeah, you have easily put out the game most. I mean, I have to be proud of my own team first of all. या I think या hats off या to Arsenal. I think they were on par कि उनका जो काम था उनको करना था। I think it is और ये एक क्रिटिसिज्म है कि अगर लोगों को बोलेगा तो डिफेंड करने को, आई थिंक दैट इज़ वेयर हाउ पीपल वांट टू डिफेंड कि मेरे मिडफील्डर्स मेरे पास होना चाहिए भाई। और मतलब सब कुछ होना चाहिए ताकि अच्छे से डिफेंसिव परफॉर्मेंस दो। आई अंडरस्टैंड दैट, ओके, बट दैट इज फ्रॉम द नेगेटिव पर्सपेक्टिव एंड अ पॉजिटिव पर्सपेक्टिव ऑन एटिहाद अगेंस्ट द चैंपियंस। अगर ये कोई और टीम के साथ ऐसे करते तो मैं चूतिया बोलता, राइट, बट इट वॉज अगेंस्ट सिटी और सिटी को दिया था एंड वी हैड दिस चैलेंज कि हम लोग को पता है हम लोग गोल नहीं खाएंगे, तुम लोग मारने की कोशिश करो, यही था बेसिकली चैलेंज, राइट। एक चीज बस देख, जब तू कंटिन्यू करे, व्यूअर्स हमारी डिस्कशन चल रही थी जैसे रेड कार्ड मेरा फर्स्ट, जब सेकंड हाफ स्टार्ट होने वाला था हमारी डिस्कशन, एंड आई आस्क्ड दिनेश ए क्वेश्चन हाँ कि डू यू थिंक सिटी विल स्कोर। मैं बोला था आई डोंट थिंक सो कि सिटी कैन हैव द हाँ चांस मैंने भी टू, वही है बोला, ना। नो बोला और था, दिनेश ने भी सीधा बोला नो, आई डोंट हाँ थिंक सिटी कैन स्कोर, और वही हुआ। वही हुआ। एंड ऑल्सो अगर एक और चीज़ थोड़ा सा माइकल ओलिवर के बारे में बोल देता हूँ, जो ट्रोसार्ड को जो मिला था रेड, इट वाज एक्चुअली ही शुड हैव ब्लोन विसल व्हेन द बॉल एक्चुअली ड्रॉप्ड ऑन बिफोर, मतलब जैसे ही वो बर्नार्डो सिल्वा हेड करने वाला था ना तभी उसको सीटी बजाने देना चाहिए था, क्योंकि वो 50 उसने +6-7 किया था तो 53 हो गया था वो, ऑलमोस्ट 53 या 54 हो गया था, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक तू है देखना वो, एक बार, तू देखना नहीं एक बार। नहीं वो मैं आई अंडरस्टैंड दैट पार्ट आल्सो, 52 प्लस में मारा था वो हाँ चीज। 52+ पे तो सीटी, मतलब हाँ, यार वो पर ऑलमोस्ट अटैक खत्म हो चुका है यार, अटैक खत्म वो हो चुका है। वो ठीक है, पर मेरे को इशू ये है कि स्मॉल बैचो क्रिटिसिज्म है, स्मॉल नहीं, क्रिटिसिज्म है। वो ठीक है पर उससे बड़ा क्रिटिसिज्म है बैचो, वो तुमने 90 मिनट के बाद 7 मिनट ही कैसे दिए। हाँ बैचो वो अलग है। कम से कम 12-13 मिनट होने चाहिए हाँ थे, एंड क्योंकि ऑल्सो दिस वन ये भी 7 मिनट 5 के बाद मिनट 8 हो चुका था, 8+ हो चुका था। 5 मिनट तो अकेले टिम्बर ने लगा दिए थे भाई बैठ के, हाँ एग्जैक्टली। और रायन ने 2 मिनट लगा दिए थे। हाँ कितने लोग बैठे हैं। I mean it would have been And 8-10 and minutes it at is not a least. complaint of Arsenal. Arsenal should do that. मेरे को उससे इशू नहीं है। But the issue is कि उन्होंने 7 मिनट कैसे दे सकते हो? मतलब Yeah, भाई exactly. मतलब they are disgrace, मतलब लोग, I think they want this. I mean, That's the only why they're the not only do the only earlier thing भाई? earlier thing बहुत अच्छा लगा मुझे यार, ये 15 मिनट्स वाला जो पिछले सीजन में हुआ था ना, कि अगर टाइम वेस्टिंग है तो हर एक टाइम वेस्टिंग में वो लोग गिन लेते हैं और लास्ट में तूने देखा होगा जैसे वर्ल्ड कप में हुआ था 12 मिनट 13 मिनट 15 मिनट, आई थिंक तभी होता है क्योंकि आज तूने देखा होगा इट वॉज अ स्टॉप स्टार्ट गेम, तो तूने देखा होगा ऑन द पिच उन्होंने कितना मिनट्स खेला होगा, और टॉटनहम के गेम्स भी होता ऐसे होता है कि ऑन द पिच वो लोग कितना खेलते हैं, मैक्स टू मैक्स 30-40, मतलब 30 मिनट्स से नहीं, ईच हाफ मतलब 60 मिनट्स खेलते हैं मैक्स टू मैक्स, बाकी 30 मिनट्स तो बेंच बॉल बाहर ही रहता है। मतलब तू प्रीमियर लीग का एक बहुत अच्छा स्टैट्स है दोस्तों, अगर तू जाके देखना यार, प्रीमियर लीग आई थिंक इज द मोस्ट लीस्ट ऑन द पिच प्लेड लीग, बाकी सब ड्रामा 52-53 मिनट, only 50 to 53 minutes is on the average. is ला लीगा में 62 63 65 के आसपास है ला लीगा में। देखो 50 मिनट्स बस हम लोग वी आर बेसिकली आधा मैच देख रहे हैं बेंच। आधा मैच देख रहे हैं, इसलिए मतलब बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि कौन ही देखता है 90 मिनट्स का मैच बिकॉज ऑफ दिस फकिंग ड्रामा, राइट। ठीक है, बट इवन आर्टेटा द सेम क्रिटिसिज्म आई वुड से, बट आई थिंक आवर टीम at the last moment of the game, that's why even if you go to Etihad, any champions team, right, you have to get the result out of the team. अगर तुम 3 points के लिए aim कर रहे हो, लास्ट में we basically we thought कि जो हुआ था सिटी में, जो रेफरी ने किया था वो हमने खुद के लिए कर लिया। वी वर ऑल स्लीपिंग, जैसे ही जैक रिलीश को पता नहीं था कि वो इतना जल्दी लेगा, और हम लोग क्या कर रहे थे, वी वर ट्राइंग टू सेट अप द डिफेंस। जब सेटअप हम लोग डिफेंस कर रहे थे तभी जाके वो मतलब ही टुक 1-2 फ्रॉम आई थिंक अकांजी, और अकांजी को लेने के बाद वो अंदर चला गया, एंड आई थिंक कोवाचिच वाज फ्री ऑफ स्पेस, गुड सेव अगेन फ्रॉम राया, बट आई थिंक ही कुड हैव डन बेटर, बट प्रॉब्लम था कि डिफेंडर्स बहुत लोग उसके आगे थे, सो ही कुड नॉट हैव डन दैट मच। ही ऑलमोस्ट सेव्ड दी जॉन स्टोन्स एज वेल, उसने हाथ ऐसे थोड़ा सा किया था, बॉल रूफ पे लगी, सो I mean, it could have been done, but it was a point well deserved. I think
सिटी ने भी मतलब पूरा पूरा ट्राई नहीं, no, किया उनके I हिसाब से. think no, I think you should have won the match. मेरे हिसाब से Arsenal deserve to win the match. Yeah. I'm not, मैं bias नहीं हूँ इस चीज में कि City didn't deserve to Yeah. win this match. The only thing बोल सकते हो कि अगर वो माइकल ओलिवर हकता नहीं तो that could have been a different game. Yeah. कि मतलब फर्स्ट गोल अगर उस तरीके से नहीं आया तो दैट कुड हैव बीन अ डिफरेंट गेम. दैट्स द ओनली पॉइंट सिटी कैन टॉक अबाउट. Yeah. अदरवाइज द वे दे प्लेड इन द सेकंड हाफ, इट्स एन एब्सोल्यूट टेररिज्म फुटबॉल. Yeah. बिल्कुल टेररिज्म फुटबॉल थी वो, बिल्कुल जो आज उन्होंने करी. मतलब तालिबान भी प्राउड ऑफ होगा उस फुटबॉल के लिए सीरियसली. Yeah. Yeah. So guys, please like, share and subscribe our videos, guys. हम लोग एक एक मिनट नोट करते हैं और आपके लिए हम लोग सोच रहे हैं कि अनबायस्ड ओपिनियंस भी लाएं और ऑब्वियसली बायस तो निकलेगा ही कभी ना कभी, तो माफ़ कर देना उसके लिए. बट प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब our videos. We'll keep on posting and keep on entertaining you guys till at least this season, and our road to 1K is also still pending. So अपने फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स सबको बोल दीजिए कि देखने के लिए अगर है तो. And Paul, let's. And after the lots of drama, heat, anger, frustration, everything, the most funniest moment of the match came after the match. It was one of the Arsenal fan reacting to the equalizer, and let's just share the screen. I Troops TV बहुत ड्रामेदार टीवी है. I think I was one of the fans. I think I started this channel. He wanted to become him. Basically वही था कि क्योंकि I used to watch lots and lots of videos of him. Hats off to Troops. It is a genuine reaction from an Arsenal fan. मेरे लिए भी यही था, but मैं अंदर था. But ये I think you can't do this kind of thing. Bomba clot. Time with it. Yo, take your time with it. Yo, time with it. Pussy them. Come on. This is their last fucking chance. Come on, Arsenal. Come on. Keep him out the fucking. Oh no. Oh my days. Oh my days. You're fucking kidding me. Oh no. Oh no. Man, pause. Yeah. Bro, अगर मैं भी आज से तो मेरा भी यही रिएक्शन होता. मतलब मेरा तो ऑलमोस्ट दिल टूट जाता. मैं मतलब लास्ट में जो सब तुम्हें सांत्वना दे रहे हैं ना आर्सेनल फैंस को कि इट इज स्टिल अ गुड पॉइंट एट द एटिहाद, इट इज स्टिल अ गुड पॉइंट एट द एटिहाद. गान मराओ गुड पॉइंट एट द एटिहाद. मेरे को जीत रहा था भाई. आई वुड जीतना था मुझे यार. अगर मैं आर्सेनल फैन होता ना तो मेरे को बहुत दुख होता. मेरे को बहुत दुख होता. बट लेट्स एनफ अबाउट आर्सेनल. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट मैच एंड द नेक्स्ट डिसग्रेस. Yeah, bro, correctly put. I mean, but they achieved a bigger thing, bro. They had a clean sheet after a long time. So, guys, we are going to discuss about, a match which was basically sore to the eyes in the second half. But first half was अच्छा था, and that is basically Crystal Palace versus Manchester United, which ended up in a 0-0 draw. After the whole week was goal galore. It was all of threes. मतलब पूरा जो सैटरडे का जो वीक था, इट वाज ऑल 3 goals. और जैसे ही मतलब मैनचेस्टर यूनाइटेड आया, एंड एज एक्सपेक्टेड इट वाज 0-0. सो पाल, आई थिंक आई हैव टू फर्स्ट गिव at least some credit to Ten Hag for setting up the first half. First half they created loads and loads of opportunities because of the Crystal Palace size which they were placing. Because जो उनका right back he was not on par with जो एनकेटिया और राइट बैक का जो कॉन्वर्जेशन था वो इतना अच्छा नहीं था, और उनका जो मिडफील्ड था वो पूरा खोखला ही था. तो इसलिए क्या हुआ, और मेटेटा कुछ कर नहीं रहा था, राइट. तो आई थिंक Garnacho had many opportunity to score. I think in the first half it should have been 4-0 or something. I think some things I don't know how they forget to score or how they do not score. Bruno Fernandes had opportunities, he did not score. Garnacho had one-on-one opportunity, he did not score. I mean, or De Ligt should have scored their header. दो header था, दोनों को score करना चाहिए था. De Ligt, it was a good. I mean, Dean Henderson had a Raya type performance. He was one of the best in the first half, but second half I think it was almost nonsensical from the team. But Paul, first let's tackle the first half problem. You saying, I mean, I've seen you're doing like this, but have Manchester United created chances or not? यस, आई एग्री कि फर्स्ट हाफ एक्साइटिंग था यूनाइटेड फैंस के लिए. और मैं देख भी रहा था ट्विटर पे वगैरह, ट्विटर टाइमलाइन पे, फुटबॉल ट्विटर पे, कि एवरीवन वाज सेइंग दिस इज द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द सीजन, बेस्ट हाफ ऑफ द सीजन दैट वी हैव एवर सीन, वैसा करके.
क्योंकि मैं तूने देखा उनका जो सेंटर हाफ था वो भी ऑलमोस्ट लाइन मतलब उनके हाफ पे थे, मतलब नहीं सो एंड दे वर डोमिनेटिंग फुटबॉल इन द सेंस दे हैड मोर पोजीशन, ऑलमोस्ट 60 to या 70% पोजीशन. या नहीं, मैं कंप्लीटली एग्री कि जो उनका था पहले जो यूनाइटेड ने किया वो अच्छा था। दे ब्रेक डाउन द टीम, मतलब मेन थी कि वो डोमिनेट इन द सेंस, वो डोमिनेट नहीं कर रहे थे, दे वर नॉट पॉपिंग क्रिस्टल पैलेस आउट ऑफ द पार्क। दे हैड अ ग्रेट ग्रेट थ्रू बॉल्स, जो गर्नाचो को थ्रू बॉल खेला, क्योंकि क्रिस्टियन एरिक्सन कर सकता है, वो कभी भी ये काम कर सकते हैं, क्रिस्टियन एरिक्सन को हम जानते हैं। पर मैं ये इसलिए कर रहा था कि आई थिंक कि आई हाफ अग्री विद यू, यूनाइटेड क्रिएटेड सो मेनी चांसेस, यूनाइटेड वर गुड, पर वेयर आई डिडंट एग्री कि हाफ में क्यों एग्री नहीं करता हूँ कि क्रिस्टल पैलेस वाज एब्सोल्युटली पथेटिक एंड शिट। Yeah. क्रिस्टल पैलेस बहुत ही गंदा खेल रही थी, एंड वन मैनेजर सॉ कि हम गंदा खेल रहे हैं एंड ही डिड समथिंग, हाँ एंड exactly. द अदर मैनेजर सॉ कि दूसरा मैनेजर ने चेंजेस किए हैं, तो Hmm. व्हाट शुड आई डू, एंड ही बिकेम वर्स, है ना। तो वही पॉइंट है। एंड आई जस्ट वांट टू से दैट कि वो चीज हम बाद में डिस्कस करेंगे कि एज ए हेड आल्सो चांसेस कि द बेस्ट चांसेस ऑफ द गेम, द बेस्ट चांसेस ऑफ द गेम फेल टू एजे, जो भी उसका फर्स्ट नेम है, इब्रूएचे एजे, और जो भी है एजे को जो वो चांस मिले थे बोथ, क्योंकि गर्नाचो वाला जो फर्स्ट वाला चांस था, लेट्स ब्रेक डाउन द चांसेस ब्रो, जो एग्जैक्ट चांसेस थे। डिलीट वाले चांसेस आई अंडरस्टैंड, पर दे वर सेवेबल आल्सो, जो वो वाले डिलीट वाले जो थे, इससे और सेव थे. हाँ. हाँ, और उसने हेंडरसन ने सेव भी किया, हाँ. मतलब हेंडरसन इज डिसेंट एनफ गोलकीपर, और उसने वो चीज की भी सही। पर द चांसेस जो वन ऑन वन थ्रू बॉल्स वाले चांसेस है, फर्स्ट ऑफ ऑल गर्नाचो वाला चांसेस है। गर्नाचो को हम जानते हैं भाई, ही इज नॉट अर्लिंग हालैंड कि वो हर चांस फिनिश करेगा ही करेगा। और दूसरी चीज कि फर्स्ट वाला जो चांस आया था वो उसके लेफ्ट पे आया था, दैट चांस ही कुड हैव फिनिश्ड, ही डिडंट फिनिश, वो मिस हो गया, ठीक है, वो पहला चांस था उसका, क्योंकि वो लेफ्ट पे भी आया था, एंड इट वाज अ डिसेंट सेव बाय Henderson. हेंडरसन। लेकिन तो सेव की इतनी तारीफ नहीं करेगा, यू विल ब्लेम गर्नाचो, ही शुड हैव स्कोर्ड दैट, पहला चांस। सेकंड चांस मैं उसको इतना एग्री नहीं करूंगा, सेकंड वाला चांस जो आया था, क्योंकि बॉल बहुत वॉबल कर रहा था। आई थिंक गर्नाचो डिड द बेस्ट ही कुड उसमें, और वो टप्पा खा के उसने चला गया, और ब्रूनो ने भी जो कर सकता था उस हाफ वॉली पे, ब्रूनो आल्सो डिड द बेस्ट। तो मेरे हिसाब से कि दे डिड देयर बेस्ट इन दैट, और वो गोल नहीं हुआ। उसके अलावा और कौन सा चांस था उनके पास? उनके पास वो हेडर थे, हाँ 2 हेडर्स और ये 2 चांस, तो 4-0. हाँ हाँ. हाँ, तो ये 2 चांस थे, वी तो मतलब 2 हेडर्स और कुड ब्रूनो हैव फर्नांडिस को जो आउटसाइड ऑफ द फुट, मतलब ऑलमोस्ट या इतना पूरा खाली गोल था, या तो उसने आउटसाइड ऑफ द फुट अब बाहर ही ऑफ टारगेट मार दिया. हाँ हाँ, और मैं जो टेररिज्म से जो मैंने ये स्टार्ट किया था, ये वाला एपिसोड की टेररिस्ट, कि पहला टेररिस्ट रेफरीज, दूसरा टेररिस्ट पेप गार्डियोला, एंड जो पेप गार्डियोला से ऊपर वाली कैटेगरी में जो टेररिस्ट आता है, मतलब अलकायदा के सप्लायर्स, ठीक है, वो टेररिस्ट था ब्रूनो फर्नांडिस। ब्रो मतलब पथेटिक, और एंड टेनेक को भी मैं उसी कैटेगरी में डालूंगा, टेनेक आल्सो, कि ब्रो पथेटिक, क्योंकि हम चूतिए नहीं है भाई, जो हम आंखों से मैच देखते हैं, हम स्टैट एक्सेल शीट से मैच नहीं देख रहे हैं कि ब्रूनो ने ये किया ये किया ये किया। अगर तुम्हें एक्सेल शीट से भी मैच देखना है ना, ब्रूनो लॉस्ट द बॉल फकिंग 35 टाइम्स इन दैट मैच, 35 बार बॉल लूज की उसने उस मैच में, और सब बोलेंगे भाई कि हाँ क्रिएटिव प्लेयर्स तो बॉल लूज करते ही है, नॉट 35 टाइम्स, 35 And टाइम्स। also it was not हाँ on the verge of passing a key pass. हाँ, की पास वो normally 35 pass. हाँ. 35 टाइम, मतलब तुमने सामने वाली Against Crystal Palace. सामने वाली टीम को तुमने इनवाइट किया कि काउंटर अस, 35 टाइम्स यू हैव सेट की काउंटर अस। जो एंड वन मोर थिंग कि जो निखिल, जो बहुत ज्यादा पॉजिटिव थे ब्रूनो फर्नांडिस के बारे में, कि ब्रो आई थिंक निखिल्स आईज हैव ओपनड नाउ। मैं टेक्स्ट करता हूँ निखिल से, पूछता हूँ कि ब्रो कि कैसा रहा, कि हैव योर आईज ओपनड अगेंस्ट ब्रूनो फर्नांडिस, उसके बारे में, कि we know bro, we know कि वो he is a absolutely dross of a player on the ball, और ऑफ द बॉल तो वो भागता नहीं है, मतलब he just runs, he is ब्रूनो प्रेस नहीं करता है, ब्रूनो बस कुत्ते की तरह अंधा भागता है। ब्रूनो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रनिंग एंड प्रेसिंग। प्रेसिंग में तुम है ना स्पेस क्लोज डाउन करते हो, तुम पासिंग लेन्स कट ऑफ करते हो, ये चीज तुम दिमाग से सोच के करते हो कि मैं इधर से भागूंगा तो एटलीस्ट ये वाली इसकी पासिंग लेन कम हो जाएगी, तो ये बंदा पीछे वाले बंदे को देने का ट्राई करेगा, और वहां पे ऑलरेडी बंदा एक रन ले रहा है उस वाले बंदे के लिए, जो ट्रिगर प्रेसेस होती है ना वो दिमाग में। ब्रूनो बस कुत्ते की तरह भागता है ब्रो, को उसको ब्रूनो को तुम रोंडो में है ना 2 घंटे खिला लो, ब्रूनो बॉल नहीं ले पाएगा। वो क्या बोलते हैं, अगर इसमें तुम अच्छे प्लेयर्स का कोई रोंडो कर दो ना, ब्रूनो को बीच में खड़ा कर दो, ब्रूनो बॉल ले ही नहीं पाएगा। इतना गंदा है वो उस भागने में, प्रेसिंग में, सीरियसली। और उसके बाद टेनाग द अदर टेररिस्ट, वो मतलब टेनाग बिन लादेन जिसे बोल रहे थे, सीरियसली ब्रो, उसको हाइजनबर्ग बोल रहे थे ब्रो, ही इज नॉट हाइजनबर्ग, वो ही इज हाइजन शिट।
पे हाइजन शिट और हैनेकन तुम बोल सकते हो उसे। हाँ मतलब बहुत ही गंदा ब्रो, मतलब उसके बंदे के पास है ना पूरी टीम में है ना 5 टेक्निकल प्लेयर्स थे पूरी टीम में। मैं बोलूँ अमाद, ठीक है, जर्गजी, क्रिस्टियन एरिक्सन, हम्म कोबी माइनो और मेजरावी, ठीक हम्म है, 5 अच्छे टेक्निकल प्लेयर्स थे ब्रो। उसने है ना 60 या 65 मिनट में ही टुक द 3 टेक्निकल प्लेयर्स ऑफ। और किसको, कौन, तीनों जो मतलब आगे खेल रहे थे, हाँ एरिक्सन, आमाद और जग्जी। और हम्म जग्जी के बारे में ब्रो आई टोल्ड यू, मैंने पर्सनल भी टेक्स्ट किया था, आई थिंक इज अ वेरी गुड फुटबॉलर। हम्म वो वाला चीज है कि ही प्लेज द 1-2, ही yeah नोज वेयर टू टर्न। facilitator जो मतलब क्या बोलते हैं कि मतलब बीटा वर्जन ऑफ कौन सा बर्बटॉफ, बेसिकली बीटा वर्जन ऑफ बर्बटॉफ, यू कैन कॉल दैम, और मोर ऑन द बॉल वर्जन ऑफ काई हैवर्ट्स बेसिकली। पर वो हेडर नहीं मारता, पर और ही इज बिट स्लो आल्सो, उसकी फिनिशिंग में भी वी हैव डाउट्स, बट ऑन द बॉल इज एब्सोल्यूट गुड फुटबॉलर। ही वाज फैसिलिटेटिंग ऑल द थिंग्स, जो क्या बोलते हैं रॉबर्टो फिर्मिनो करता था ना उसके लिए, सलाह और माने के लिए, वो एब्सोल्युटली वो काम कर रहा था। बट यू शुड हैव सलाह माने टाइप ऑफ विंगर्स देन। yeah बेंचो यू शुड हैव बेंच, एक तरफ गर्नाचो जो वो मतलब फिनिश नहीं है वो वैसा वाला प्लेयर है, मतलब हाँ बिल्कुल ही मतलब हड़बड़ा जाता है, मतलब और बॉल उसको वो ग्रेनेड की तरह लगती है ना बेंचो कि कब मतलब फट ना जाए, कब फट जाएगी मेरे पास जाके, इसको फेंको जल्दी से। और जो वो तूने वो वाला वो देखा है, तूने वेलकम मूवी देखी है, वो कौन सी अक्षय कुमार वाली जो वेलकम मूवी है। हाँ हाँ वेलकम हाँ वो तो देखा है हाँ, तो उसमें लास्ट में वो एक जगह याद है कि वो उसमें फंस जाते हैं पहाड़ पे एक घर में, और है ना हाँ पास द पार्सल खेलते हैं वो, हाँ कि जिसको पास द पार्सल मिलेगा जिसके पास बॉल रुक जाएगी ना उसको गोली मार देगा वो हाँ बंदा। तो ये मैनचेस्टर यूनाइटेड वैसे ही खेलती है ब्रो वो बॉल, वो कि जिसके वेलकम बैक थी शायद नहीं वेलकम था, वो वेलकम ही वेलकम था थी। क्या हाँ वो पहली वाली वेलकम ही थी कटरीना कैफ वाली, ठीक है। हाँ अक्षय कुमार कटरीना कैफ थी उसमें। तो वो तो उनको ऐसा लगता है कि भाई मेरे पास अगर बॉल रुक गई ना, तो कहीं से कोई स्नाइपर बैठा है ब्रो जो मेरे को उड़ा देगा वहां पे। दे डोंट वांट द बॉल। ब्रूनो को तूने देखा नहीं ब्रो, उसके पास एम्पल ऑफ स्पेस भी हो, कोई प्रेस भी नहीं कर रहा हो चाहे, वो भर देता है। मतलब वॉल्यूम पासर हम ब्रूनो को किस लिए बोलते हैं भाई, मतलब ब्रूनो पता क्या है, ही इज ए फीफा प्लेयर हमारी तरह। मतलब वो कॉलेज में कभी चैंपियन एम्पियन रहा होगा, और उसने एक प्लेइंग स्टाइल होगा कि फीफा में अपन खेलते हैं ना, हाँ अंधे पास दे देते हैं ना, बिल्कुल अंधे पास देते हैं ना, ऐसे दबाते रहते हैं, एरो इधर करते रहते हैं, इधर बॉल है तो इधर करके एरो जल्दी से दबा दिया हमने आते ही, हाँ इसके पास आई नहीं और हमने एरो दबा दिया, इसके पास आई नहीं और हमने डब्लू वो क्या बोलते हैं, पास तो ऐसा होता है ऊपर वाला कौन सा होता है जिससे हम थ्रू बॉल देते हैं, क्यूडब्ल्यू नहीं वो कंट्रोलर में, कंट्रोल में कंट्रोलर में होता है जो भी थ्रू, ट्रायंगल हाँ वही हाँ जो भी थ्रू वाला बटन होता है, तो जल्दी से जैसे ही मेरे पास बॉल आई नहीं मैंने थ्रू दबा दिया। तो ब्रूनो देखता आई थिंक उसी तरीके से मैच जैसे वो फीफा देखता है, पर उसमें कैपेबिलिटी जीरो है भाई वो चीज एक्सिक्यूट करने की। फीफा में तो वो मैचो डमीज कर रहे हैं, वो कोड कर रहा है, कोड कर सकता है काम, लेकिन तू मैचो नहीं कर सकता, तो चूतिया है। तो वो ब्रूनो वही करने का ट्राई करता है। और तारीफ उसकी क्यों होती है, जब 100 में से वो 3 बार चीज हो जाती है ना फीफा वाली, तो उसकी तारीफ हो जाती है कि भाई जिए 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 जिए, और बेंचो और उसी, बट वी वॉच द गेम विद आवर आईज ब्रो। ब्रूनो इज ए मतलब he was poor actually that game he was टेररिस्ट। मतलब अगर फुटबॉल, मतलब अगर क्या बोलते हैं योहान क्राइफ, अगर मतलब डेमोक्रेसी है ना एक तरीके से फुटबॉलिंग वर्ल्ड में, तो ही इज ए टेररिस्ट कि जो मतलब डिक्टेटरशिप लाना चाहता है। Yeah, I think so. Sometimes I think Xerxes as being the facilitator. I think something. I think Manchester United का problem facilitation में पहले नहीं था. वो actually कोई goals कोई score करता ही नहीं था मैनचेस्टर यूनाइटेड में. यही problem था कि who is going to be the goal scorer. I think when you bring Xerxes, I think when you look at him, initially I thought he's going to bring them goals. He's going to be there, but obviously he's going to run into the box as well to basically score the goals. बट वो क्या करता है ना, वो फैसिलिटेशन में ही रह जाता है, मतलब ही इज़ नॉट पॉपिंग अप इन द राइट एरियाज वेयर ही हैज़ टू फिनिश सम ऑफ द गोल्स. तो वहाँ पे वो लोग, तू जैसे बोला था तूने, साला और माने रहते हैं, और वहाँ पे है गर्नाचो और अमाद दियालो उसके पास क्वालिटी है, बट फिर भी बच्चा है. आई थिंक गेम इन गेम आउट तो नहीं कर सकता. यू कांट ट्रस्ट अ किड. ही नीड्स टू पॉलिश अप. And also against a low back, right? Against a low back, you need some player who is basically going for the tap in stuff. जो इन्होंने फुलहैम के अगेंस्ट कैसे जीता था, गलती से उसने पैर डाल लिया, गोल चला गया. सो सेम चीज़ उनको भी करना था, वरना फुलहैम गेम भी नील होता और ये लोग खुश हो जाते, क्योंकि स्टार्टिंग में इन्होंने चांस क्रिएट किया और इन्होंने नहीं लिया. तो सेम टाइप ऑफ गेम था. बट इसमें 2 स्टार चेंज पाल ने बहुत सही चीज़ बोली है गाइस. और जो मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस, यू हैव टू नोटिस दिस. मैनेजर ही सब्स्टिट्यूटेड मेटेटा ऑफ.
Mateta was one of the in-form strikers in the Premier League, not for Crystal Palace. In the Premier League वो सबसे in-form striker था. 16 गोल थे लास्ट सीजन. And उसको substitute करके बिठा के he bought Jefferson Lerma, and then he told Nketiah to basically on par with him. उसके बाद वो आया था कौन अपना जो क्रिस्टल पैलेस का जो हमेशा खेलता ही रहता है वो उसका ब्लॉन्ड गाय. नहीं वो उसको लाया. उसने Phil मिडफील्ड को भी Hughes. चेंज कर दिया क्योंकि मिडफील्ड पूरा खोखला था. हाँ. ठीक है, वो आते ही उसने पूरा रफन अप करना स्टार्ट कर दिया. और एक और बंदे को लाया था वो हमेशा जेफरी श्लॉप हमेशा लाता है लास्ट स्लब में. और सार को भी लाया. इस्माइल सार को भी लाया. तो उससे बाद क्या हुआ, उसके बाद मतलब ये जो फुलहैम वाला गेम स्टार्ट हो गया सेकंड हाफ टाइप. तो मतलब नो वन इज एबल टू टेक चांसेस. और ना वो लोग नो वन इज क्रिएटिंग चांसेस एज वेल. मैनचेस्टर यूनाइटेड सेकंड हाफ वर डल because after the substitution which he made there were no one creating opportunities. भाई क्रिस्टियन एरिक्सन एक बंदा है तुम्हारे में क्विक पासर जो क्विक फॉरवर्ड पासर है उसको तुमने बिठा दिया भाई. तो आजा ब्रो. एंड व्हाट अबाउट ब्रो not playing Rashford has the time of his game bro. Rashford सबको हम दोनों को लग रहा था भाई Rashford आ गया क्या वापस. छोटे बच्चों को चोद रहा है. पहले तो वो टेक ऑन भी नहीं करता था बट अभी उसने साउथहैम्पटन के गोल मारने के बाद उसने अच्छे से खेला है आई थिंक अगेंस्ट कोवेंट्री मैड्रिड. बट उसके बाद आने के बाद क्या हुआ रैशफोर्ड को बोला तू बैठ जा. मतलब I don't understand this manager bro. I don't know how these Manchester United fans are still trusting him to get him win the Premier League. Maybe he's winning the cup games, maybe वो एक और कप फाइनल दिला देगा या मतलब हो सकता है उसके पास कैपेबिलिटी. क्योंकि बाकी हर टीम प्रीमियर लीग में चूत जा रही है. ये बंदा सोच रहा है कि प्रीमियर लीग में मैं ना चूदूं और मैं इनको कप दे दूं तो मेरा तो लेगेसी बढ़ते जाएगा और मेरा यहाँ इस साइड में अच्छा हूँ. बट drawing at Crystal Palace and then being contented as Crystal Palace is two different things. He was contented. ड्रॉ नहीं किया उसने. he was contented. मतलब ड्रॉ तो होता है कि बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज बन रहे हैं जैसे लिवरपूल कभी भी करती है और आर्सेनल और मैन सिटी भी इतने सारे चेल्सी जो चेल्सी क्रिस्टल पैलेस का मैच होता है. एग्जैक्टली जो चेल्सी क्रिस्टल पैलेस मैच था तो ये उल्टा था. उसमें ऐसा था कि तुम बोल सकते हो कि चेल्सी ने स्टार्टिंग फर्स्ट हाफ में भी ऐसे ही था सेकंड हाफ भी ऐसे ही था. वन टाइम डोमिनेशन और एज ए हैड अ वंडरफुल स्ट्राइक. हां बट सेम यहां पे हो जाता तो क्या होता. ही हैड टू इजी स्ट्राइक्स टू स्कोर ब्रो एंड अगेंस्ट ओनाना. चलो ओनाना इस सीजन थोड़ा अच्छा है बट फिर भी आई मीन ही वन सेव ब्रो. डबल सेव वाला ब्लाइंडर था ब्रो. That was you have to give credit. He had the open goal bro. He had the open goal at his feet. ऐसे के पास दोनों चांस में फर्स्ट चांस में तो वो he could have taken the touch also. वो उसको लगा कि मेरे पास टाइम नहीं क्योंकि पीछे से कोई आ रहा है. पर उसको ये कोई था नहीं और जो पीछे से आ भी रहा था वो पहले आके वो आगे निकल गया था. वो आगे निकल वो सब लाइन में चले गए थे. तो भाई उसको आराम से वो टच लेके वो रूफ ऑफ द नेट भर सकता था. और सेकंड चांस में वो अक्रॉस द गोल भी मार सकता था और वो नियर पोस्ट भी मार सकता था क्योंकि कोई था ही नहीं चांस. ही हैड द टू इजी ओपन गोल चांसेस एज इट कुड हैव इजीली स्कोर्ड सीरियसली. और वो बंदे किसको लेके आया ब्रो जो तूने चीज बोला कि ही वाज कंटेंट का इंडिकेशन कैसे था कि ब्रो ही टुक ऑफ ऑल दैट एग्जैक्टली ही टुक ऑफ ऑल द टेक्निकल प्लेयर्स फ्रॉम द टीम एंड ब्रॉट ऑन हु हॉयलैंड एंड उगाटे जो कुछ नहीं है. नो इम्पैक्ट ऑन द गेम. उगाटे का अरे होने भी नहीं वाला था ब्रो. उगाटे इज नॉट दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर. उगाटे को मैं क्रिटिसाइज भी नहीं करूंगा ब्रो कि तूने गलती करी थी. कोई गलती नहीं है. और वो हॉयलैंड को लाया ब्रो. हॉयलैंड अगेन हैड द रिकॉर्ड की लूजिंग द बॉल 3-4 टाइम्स इन जस्ट फर्स्ट 5 टचेस. और ब्रो उसका फर्स्ट टच देखा था आते ही जो उसको ऊपर से बॉल होता फर्स्ट टच बेंच 2 किलोमीटर पीछे चला गया था वो. मतलब हाफ क्लियर कर गया था वो टच उसका. और 5 टच में तुमने 4 बार बॉल लूज कर चुकी है ब्रो. एंड जग्जी के बॉल पे पैर पे बॉल स्टिक्स. उसके बॉल पे पैर रुकती है. फिजिकलिटी भी है उसके पास. उसके पास सब है ब्रो. बस उसका फिनिशिंग वो निको जैक्सन का थोड़ा कल्चर्ड वर्जन बोल सकते हैं कि निको जैक्सन थोड़ा पेसी है एंड ही जस्ट अ लिटिल बिट कल्चर्ड वर्जन ऑफ निको जैक्सन. और दोनों काम सेम ही कर रहे हैं कि दोनों को फिनिशिंग सीखना है बेसिकली. तो एंड लास्ट थिंग कि कोबी माइनो भी क्या कर सकता है ब्रो अकेला. वो व्हाट दैट गाय कैन डू ब्रो. मतलब वो बंदा मैच स्टार्ट होने से पहले मैंने बोला था कि डज दिस मिडफील्ड हैज लेग्स. क्योंकि कोबे माइनो क्रिस्टियन एरिक्सन और ब्रूनो
and they held their own, I guess, for the first 45-50 minutes because Crystal Palace were absolutely shit. और and जो उनका मैनेजर है ग्लासनिच, he identified that कि मैं और उसने he stamped authority मटेटा वगैरह की, तू चूतिया निकल भाई तू यहाँ से, and let me bring on the guys who I trust and who would control the game more. And he bring on the footballer. Schlappert is a good footballer. Sarr is a good footballer. Who's is a good footballer in the sense average Premier 10th 11th 12th वाले टीम वाले footballer. Who's मतलब भागता स्लो भागता है पर इज अ डिसेंट एनफ फुटबॉलर, पासिंग भी है उसके पास और फाउल करता है Foul बेसिकली. करता है, हाँ. तो मतलब ही ब्रॉट ऑन द गाइज हु वुड मतलब स्टैम्प देयर अथॉरिटी ऑन द मिडफील्ड. तो वो उसको पता था कि मैं मिडफील्ड बैटल लूज कर रहा हूं क्योंकि फर्स्ट टाइम वो टेक्निकल प्लेयर्स लेके आ चुके हैं मिडफील्ड में. क्या बोलते कोबी है समबडी ही कैन पास टू, एरिक्सन है समबडी ही कैन पास टू, अमाद मेजरावी और कोबी. तो वो भी और मेस्ट है तो ज़ग्ज़ी इज ऑलवेज अवेलेबल. ज़ग्ज़ी क्योंकि वो हमेशा डीप ड्रॉप करता है. ये केन वाली उसमें आई थिंक पता है क्रिस्टियन एरिक्सन जब आता है मेरे को लगता है ब्रूनो फर्नांडिस का जो वो खेलना ही नहीं चूतियापा है चाहिए ना, वो चूतियापा कम हो जाता है क्योंकि पता है उसको जो खेलना ही नहीं वॉल्यूम चाहिए. पासिंग जो ब्रूनो फर्नांडिस करता है उससे ज्यादा एफिशिएंटली क्रिस्टियन एरिक्सन करता है. एक दो पर touches उसने पे. आज तो इसने तो मेरे हिसाब से तुम प्लेयर डिफेंस प्ले मतलब उगाटे कोबी माइनो एंड क्रिस्टियन एरिक्सन, हाँ. क्योंकि क्रिस्टियन एरिक्सन बेंच वो स्ट्राइकर से आगे खड़ा नहीं होगा. क्रिस्टियन एरिक्सन विल बी ड्रॉपिंग डीप एंड विल बी हेल्पिंग कोबी एंड दे कैन प्ले बिटवीन ईच अदर. तो वो गाटो को बेंचो खिलाने की जरूरत भी नहीं है. उसको लाओ मत बीच में अनलेस एंड तुम तीन साइड से प्रेस हो रहे हो तो तुम आपस में खेल सकते हो बिल्कुल पास, जैसे जॉर्जिनो कोवा करते थे. मेरे को बेस्ट क्यों लगते थे बता वो, क्योंकि वो फिजिकल नहीं थे, क्योंकि बस वो पासिंग शॉर्ट पासेस. मॉडरिच क्रूज क्या करते हैं ब्रो, तो वो आपस में बस छोटे छोटे पासेस खेल के पूरा निकल जाते हैं. वो छोटे छोटे पासेस स्टार्ट करते हैं वो क्या बोलते हैं अपनी खुद की डी लाइन से, और वो छोटे छोटे पास करते हैं दूसरे की डी लाइन पे पहुंच जाते हैं वो धीरे धीरे. तो दैट्स हाउ यू डू इट. बट मतलब अगेन मैनचेस्टर यूनाइटेड मतलब अगर तुम्हें ग्रेनेड फुटबॉल, तुम्हें हावर्ट्जर फुटबॉल, तुम्हें हॉट पोटैटो फुटबॉल तुम खेलोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है. यू विल अगेन लूज, यू विल अगेन सी योर टीम्स ड्रॉ. क्योंकि आर्सेनल के बारे में जो बोल रहे थे कि आर्सेनल जो अपना डिफेंसिव पार्ट जो उनका स्ट्रांग पॉइंट है वो कर रही थी अभी तक और वो करते भी आ रही है. और सिटी के अगेंस्ट एवरीवन एक्सपेक्टेड देम टू डू इट. पर जब आगे वाले मैचेस होने वाले हैं उनके जो मतलब मिड लेवल टीम से होंगे प्रॉब्ली वैसा वाला, लेट्स सी कि उनके अगेंस्ट क्या करते हैं वो, क्योंकि वो चीज उन्होंने पिछले सीजन कर रखा है. इस सीजन वो अगर करते हैं या नहीं, लेट्स सी दैट. आई एम नॉट जजिंग एनीथिंग, लेट्स सी दैट. पर यूनाइटेड यू कांट डू दैट. यू मतलब आई थिंक मैंने जो क्या बोलते हैं प्रेडिक्शन किया था, जो ओनली चेंज आई वांट टू डू इज टॉटनहम को मैं बाहर फेंकना चाहूंगा और स्टेल विला को मैं फोर्थ करना चाहूंगा बेसिकली. तो बट मैनचेस्टर यूनाइटेड आई एम प्रीटी मच क्लियर अबाउट दैट कि योर टीम is not good enough, your coach is not good enough, your midfield is not good enough, and your defense probably is not good enough also. Yeah, I think defensively they are okay. I think okay is okay bro. I would say बस okay ही not है. for a top 4 I would say, but at least to compete in the top 4 I think they are okay. No, I think Lisandro Martinez, I think they Lisandro Martinez भाई वो हग रहा है इस सीजन. Lisandro Martinez से याद आया again मतलब another disgrace of a decision bro. मतलब उससे क्लियर रेड कार्ड हो ही नहीं सकता है. मतलब इट वाज मतलब वो कमादा चूतिया अब गिरा ही नहीं, कमादा के पैर में लैंड हुआ था पता वो जो रेड कार्ड की जो डेफिनेशन है ना कि मतलब 2 फुटेड टैटल बेंच जैसे कूद के आके उसने मतलब सपोज ये मेरे पैर है और ये जमीन है ये वाली, वो ऐसे आके उसने ऐसे मारे दोनों. I think he almost did a Lucas Paqueta if you remember. लूकस पकेटा भाई पकेटा तो फिर भी पकेटा नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ नहीं थोड़ा सा और सोच. लूकस पकेटा वाला क्या था कि मैं एक और येलो ले लूंगा तो मैं जीत जाऊंगा ना, तो ये सोच रहा होगा कि मैं स्ट्रेट लेके अपने घर वालों को दिला दूंगा भाई वो. और मतलब कोई भी ऐसे दिमाग में से सोच सकता है कि 2 फुटेड खूल के बॉल को ऑलमोस्ट पंचर कर दिया था यार उसने. भाई नो रैशनल प्लेयर इन द वर्ल्ड विल डू दैट. हाँ आज तक मैंने नहीं देखा वो बॉल पंचर वाला टैकल. मैंने देखा कि लोग स्लाइड करते हुए ये चीज करते हैं. हाँ. कि मतलब देव जैसे वो उडोजी ने किया था लास्ट में चेल्सी टॉटनहम का मैच था, उसने स्टर्लिंग को किया था याद है, जो वो उडोजी ने कूद के वो दोनों पैर एक साथ लेके गया था. वो चीज ठीक है क्योंकि तुम स्लाइड कर हवा में हो तुम बिल्कुल बीच में और यू आर फ्लैट. ये बंदा ये बंदा वर्टिकल था. वर्टिकल लोग ऐसे कौन मारता है 30 मतलब 60 डिग्री एंगल से कूद के आया था, पता नहीं पता ऐसे कूद के आया था. उडोजी पे अजीब हॉरिजॉन्टल करके जाते हैं ये बंदे जिसको टैकल मारना होता है. रूनी का भी मैंने बहुत सारे देखे हैं. रूनी को भी एक कार्ड मिला था कि रूनी डिड इंजर द प्लेयर, या फिर शायद विंसेंट कंपनी था शायद वो बंदा. विंसेंट कंपनी ने 2 फुटेड टैकल मारा था 2010-11 में और मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट रूनी हर्ट भी नहीं हुआ था. पर
15 years ago they gave it a red कि भाई consequence is not the issue, it's how you do the foul. Yeah. बेंचो इट्स ऑल क्लियर रेड. मतलब जो प्रोग्रामिंग लोग जो बंदे करते हैं ना, उसमें वो कलर पैटर्न होता है RGB से तुम सारे कलर्स डिफाइन करते हो. इट वाज एवर 255-0-0. उसमें कोई टिंच नहीं था येलो का, व्हाइट का कोई टिंच नहीं था उस रेड में. इट वाज अ रेड क्लियर रेड. So I think I mean referees को हर जगह अपना टांग अड़ाना ही होता है, and then yeah, I think Manchester United fans, I think you have to brace for this season as well. कि this season is also going to be a doozy like the other seasons. I think तुम लोग maybe I will not be surprised if they finish outside top 10. Oh, that's a big huge I will huge not statement. be. I will not be surprised unless they sack this Osama bin Laden. Yeah. So it's hard times for Manchester United, but there is something they have to celebrate. I think some people are celebrating as well. Ki they like their centre back pairing, and also that's because they have a clean sheet against Crystal Palace. So they are celebrating that. From this awful match to let's come to a more interesting match, and it was a very fun match to start with. Saturday बहुत अच्छा मैच में start हुआ था. We will talk about from one bald fraud to another bald genius. I think he's yet to be called as a genius, but I would say exaggeration. I would say yeah. I think it's a pretty solid performance. I think they have won, I think 3 away games. I think that he's the first manager to do it since Pep Guardiola. I think so that's a huge thing. And then it's basically a London derby. सस्ता लंदन डर्बी इसको बोलते हैं. वेस्ट हैम में जहाँ भी खेलते हैं इसको सस्ता ही बोलते हैं. और ब्रेंटफोर्ड वाला तो गरीब वाला है, गरीब लंदन डर्बी. सो इट्स क्रिस्टल पैलेस थोड़ा सा गरीब से थोड़ा सा ऊपर. So it's lower middle class. So it's basically West Ham versus us. हम लोग बोला क्रिस्टल पैलेस वाले ही बंदे हैं. We are man them. It's basically West Ham were demolished by Chelsea 0-3, and scintillating performance. I have to give scintillating performance tag to this guy, Nicholas Jackson. He was everywhere during the first half. He was almost unstoppable for the unexisting West Ham defense. I mean, at times I was shocked कि मतलब बंदे हैं कहाँ, सब जो चेल्सी के हाफ में. मतलब कोई भी ट्रैक बैक नहीं करना. लुकास पैकेटा नहीं, सब ट्रेडमिल पे हैं. वो तेरे को याद है वो 19 नंबर जो बंदा है उनका अल्वारेज करके, वो भाई कितना स्लो भागता है. वो भाई भागे जा रहा है, पहुंचता नहीं, वो पहुंच ही नहीं रहा. और ऊपर से और किसको लाया उससे ज्यादा कम स्लो प्लेयर को, सूचक को. मतलब व्हाट इज Laporte thinking? But okay, let's leave it. I think Paul, I think I would like to hear it from you. I think you should be happy with this performance and as such. But I would also want to commend one guy, which I think I have also spoken about him start. I didn't trust Nicholas Jackson to do. I think he was a good runner. I understood that part from him, but the only part he was lacking was finishing. But I think this is the way you need a striker to be. I think he needs to be in the right places and make the right runs like how Haaland does, and also take his chances. So I think पाल तूने बोला था ना Zirkzee का गेम मेरे को क्यों इतना वो अच्छा नहीं लगा है, क्योंकि I want Zirkzee to do both the things. कि वो striker का काम both the things है. He has to facilitate and also he has to be at the right place to score goals. Yeah. I accept so that. Paul, I mean you have to bask in this glory. glory को bask करके तू बता how did you feel about the Chelsea game? नहीं, I will be real. इसमें कोई ऐसा बास्क वाली बात नहीं है. मैं बोल रहा हूँ कि you understand, मतलब तेरी एक्सपेक्टेशन गलत नहीं है कि स्ट्राइकर शुड हैव बोथ द थिंग्स, कि कनेक्ट भी करना चाहिए वो डीडेड रोगबा की तरह और वो फिनिश भी करना चाहिए डीडेड रोगबा की तरह. बेसिकली तेरी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल गलत नहीं है, पर मैं बोल रहा हूँ कि आई एक्सेप्ट दैट. मेरे हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि मैं उस पर क्रिटिसाइज नहीं करता उसको ज़्यादा, मतलब फिनिशिंग पे, क्योंकि बिकॉज आई नो दैट ही कांट फिनिश. पर मैं उस फिनिशिंग की वजह से मैं उसकी जो दूसरे एट्रीब्यूट्स है उसको मैं डिमिनिश नहीं करता हूँ. मतलब कि अगर उसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं तो मैं ये नहीं बोलता कि ही इज अ शिट प्लेयर जो बाकी सब बोल देते हैं. मैं बोलता हूँ ही इज नॉट अ शिट प्लेयर, ही इज अ वेरी गुड प्लेयर ऑन द बॉल बेसिकली, बस उसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं है.
तो आई एक्सेप्ट दैट कि उसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं है, जग्जी का भी एक्सेप्ट है फिनिशिंग अच्छी नहीं है, बट दे आर वेरी वेरी गुड फुटबॉलर्स। हालांकि की वो क्या बोलते हैं, हॉयलैंड की फिनिशिंग अच्छी है, हमने देखा है, डिसेंट है फिनिशिंग है उसकी, पर ही इज एब्सोल्युटली शिट फुटबॉलर। हमने उसका फर्स्ट टच देख लिया है ब्रो, क्या उसका फर्स्ट टच कैसा है, उसका मतलब हमने क्या बोलते हैं उसका फिजिकलिटी देख ली, उसकी फिजिकलिटी कैसी है, उसका रनिंग देख लिया, रनिंग प्राउस कैसा है उसका, कि वो मतलब धक्के से धक्का देकर रन लेना मुश्किल है। चैंपियंस लीग में यू कैन डू कि धक्के से धक्का लेना वाला रन जो उसने एक मैच में किया था चैंपियंस लीग में, बट ये प्रीमियर लीग में डिफरेंट नहीं है। एंड ब्रो ऑन निकोलस जैक्सन, पहले निकोलस जैक्सन के बारे में बात करते हैं, देन वी ब्रिंग ऑन द मैच। आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ वीडियो नाउ के है ना, आई एम सॉरी निकोलस जैक्सन, आई डिडंट ट्रस्ट यू भाई, बिकॉज यू वर नॉट वॉचिंग द मैच, यू वर वॉचिंग द स्टैट्स, यू वर वॉचिंग द एक्सेल शीट्स। मैं भाई मैच देख के बताओ ना कि तुम क्या, तुम मतलब टॉक टू मी अबाउट द एट्रीब्यूट्स, तुम्हें क्यों बुरा लगता है मतलब वैसा फिनिशिंग नहीं है, आई अंडरस्टैंड, पर बहुत लोगों की फिनिशिंग नहीं है ब्रो। हालैंड की फिनिशिंग है जो अच्छी फिनिशिंग है, आई कंप्लीटली एक्सेप्ट दैट, पर हालैंड आल्सो मिस ब्लंडर्स, हालैंड बहुत बड़े बड़े ब्लंडर्स मिस करता है। सबसे ज्यादा तो देखेगा ना प्रीमियर लीग में जो हाईएस्ट गोल स्कोरर होते हैं ना, वही बंदे हाईएस्ट मिसर्स, हाईएस्ट चांसेस मिस भी होते हैं। लास्ट सीजन जो हाईएस्ट चांस मिस किए थे वो दो बंदों ने किए थे, हालैंड एंड सलाह, और इस सीजन भी वही कर रहे हैं और हाईएस्ट गोल स्कोर भी वही है। तो जिन उनके पास चांसेस आते हैं दे स्कोर एंड दे डोंट। आई अंडरस्टैंड कि निकोलस जैक्सन की फिनिशिंग अच्छी नहीं है, पर इज अ वेरी वेरी गुड फुटबॉलर, और उसमें और फिनिशिंग और वो धीरे धीरे ऐड कर लेता है, बिकॉज ब्रो इट्स हिज सेकंड सीजन ओनली एंड नॉट इवन इन द प्रीमियर लीग ओवरऑल इन हिज करियर, क्योंकि वो विलारियल में वो ऐसे बिट पार्ट प्लेयर खेल रहा था लास्ट सीजन, वो ज्यादा खेला भी नहीं था। तो एज ए एब्सोल्यूट प्रॉपर फुटबॉलर उसका वो सेकंड सीजन ही है ये वाला। और तो फर्स्ट सीजन में ही हैज स्कोर्ड लाइक 14 गोल्स एंड 6-7 असिस्ट, मतलब 20 प्लस जीए रहा है उसका Yeah. फर्स्ट सीजन में। तो उसको मतलब इतना क्रिटिसाइज करते हैं ब्रो, वो मिकेल बहन का लौड़ा, वो या वो जॉन ओबी मिकेल, वो मतलब ओसिमैन का लड़ चूसने के लिए वो बोले ही जा रहा है, बोले ही जा रहा है भाई कि उसको लेके आओ, जैक्सन 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 नाउ पता है उसने स्टेटस डाला है मिकेल ओबी ने कि आई एम सॉरी, और ऐसे वो वाला इमोजी, ये शट अप वाला इमोजी होता है ना, जिप वाला, वो वाला इमोजी, कि मैं और ये सारे फुटबॉलर ब्रो, सारे मतलब जो यूट्यूबर जो अपने आप को बोलते हैं ना मेरे को आई नो द गेम, आई नो द गेम, आई नो द गेम। एक यूट्यूबर है मैनचेस्टर यूनाइटेड का LYES करके, लेस करके आता है वो, और वो बंदा मतलब ऐसे ट्विटर पे वो भी है, रिपोर्टिंग वाला काम भी करता है बेसिकली, वो अब डिफरेंट डिफरेंट ये मीडिया हाउसेस के लिए वो भी करता है वो बंदा। पर वो बंदा भी वीडियो डाल रहा है, आई एम सॉरी निकोलस जैक्सन, ये सारे सारे के सारे आई एम सॉरी निकोलस जैक्सन भाई, बिकॉज यू आर नॉट वाचिंग द मैचेस। आई एम कंसिस्टेंट अबाउट निकोलस जैक्सन कि भाई वो बंदा बहुत अच्छा है, इज ए गुड स्ट्राइकर, अगर वो फिनिशिंग ऐड कर लेता है ना तो वो अच्छा है। लास्ट मैच में क्या हुआ था, वो एनकुकू ने आके जो गोल मारा था, कि बिकॉज वी न्यू कि जैक्सन अच्छा नहीं कर रहा है, सब हिम ऑफ, ब्रिंग एनकुकू, ब्रिंग द क्लिनिकल वन। तो वो चीज तुम्हारे पास ऑप्शन भी है चेल्सी के पास अभी, बट बाकी चीजें वो करता है, द वे ही कनेक्टेड द गोल ब्रोक फॉर कोल पाल्मर, वो वाला कितना अच्छा गोल था तू बता। देखो कोल पाल्मर का वो बेस्ट गोल याद है, वो जो उसने टप्पा खिला के वो रोल ओवर करके कटा के वो खाली गोल वाला किया था, उसमें जो असिस्ट दिया था वो निकोलस जैक्सन का था, वो कितना अच्छा वो उसके पीछे पे बंदा था, ही रोल्ड ओवर हिम, उसने ऐसे कटा के रोल ओवर हुआ, उसने पाल्मर को थ्रू बॉल दे दिया कि वो निकल गया। तो ये जो कनेक्शन, जो फ्लिक, कनेक्टिंग द गेम, रनिंग, क्योंकि वो विंगर भी है, प्रॉपर प्रॉपर विंगर भी है वो बंदा, वो विंगर वाला गेम भी खेल सकता है वो बंदा वैसा, बस उसके पास फिनिशिंग नहीं है, एंड आई एक्सेप्ट दैट। वो धीरे धीरे अगर सीख लेगा तो ही विल बी डेवास्टेटिंग, एंड सो आई एम कंसिस्टेंट। नॉनी माडुएके ब्रो, लास्ट मैंने बोला था वो हैट्रिक मारने के बाद ब्रो स्टिल आई डोंट ट्रस्ट हिम। कल के मैच में देख लिया ना, ही वाज एब्सोल्युटली ड्रॉस, मतलब जो हमारी राइट हैंड साइड थी वो फोफाना और नॉनी माडुएके वो सबसे खराब थी कल के मैच में। अगर हमारे पास वही मैच में रीस जेम्स और पामर भी नॉन एग्जिस्टेंट ही था पूरे मैच, पाल्मर भी नॉन एग्जिस्टेंट था, पाल्मर का भी बिल्कुल ही डिडंट प्ले वेल, उसने भी जो वो बोलते हैं ना मास्क करना, वो चीज उसने भी गोल से मास्क कर दी, पर गुड फिनिश बेसिकली, पर ही मास्क्ड हिज परफॉर्मेंस। पर नॉनी माडुएके मैं बोल रहा हूँ ब्रो, हमेशा ही मेक्स ए रॉन्ग डिसीजन, अगर जहां उसको पास करना होता है वहां वो शूट लेता है, जहां उसको शूट करना होता है वो पास लेता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि वो अपने प्लेयर को वो टेक ऑन भी नहीं कर रहा है, वो बैक पास दिए जा रहा है, उसने 2 बार बस प्लेयर टेक ऑन किए थे पूरे मैच में। तो नॉनी माडुएके, pull your socks up, or Neto is waiting in the wings who will push you out of the team in this season, and Estevao and Kendry Pies will be coming next season। तो उनके बाद तो तुझको जाना ही जाना, इधर लास्ट सीजन है ही। क्रिस्टल पैलेस इज योर टीम बेसिकली, क्रिस्टल पैलेस में वो पूरा गही चालुबा इनके साथ मस्त, वो जो इनको क्या बोलते हैं मैंडेम बोलते हैं ना, मैंडेम, कि भाई वो प्रॉपर मतलब ब्लैक प्लेयर्स स्वैग वाले बंदे। तो क्रिस्टल पैलेस साउथ लंदन जा, live your life and go there and live your life basically, but it's not your ball। and Fofana again,
choose between football and Bro, ये तो मानता है ना कि it was a penalty. it was a penalty. It was a penalty. Soft but penalty. Soft penalty, but Yeah. again, I mean, पर ब्रो दिनेश पूरा दिख रहा है यार, वो हाथ खींच के जा रहा है. वो ठीक है, पेनल्टी बारे में तू बाद में बोले, पर तू ये मानता है ना कि आई हैव बीन कंसिस्टेंट इन दिस, कि मतलब वो उस बंद की प्लेयर्स को जज करने में, कि मैं हाइप भी नहीं कर रहा हूँ जो बंदा जीए के बेसिस पे बेसिकली, एक्सेल शीट्स के बेसिस पे बेसिकली. Yeah, but actually the problem was with Nicholas Jackson and Eric Haaland. तो जो डिफरेंस बता रहा है, तो गिल्टेज अपॉर्चुनिटीज सलाह चल मिस करता चल, वो तो लिवरपूल वाज बेसिकली मिसिंग लोड्स एंड लोड्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज पिछले सीजन में. बट हालैंड का ऐसा होता है कि ही वुड हैव टेकन ऑलरेडी दैट गोल. पीपल हैव स्टार्टेड, व्हाई दे स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग निकोलस जैक्सन वाज बिकॉज देयर वर सम अपॉर्चुनिटीज were laid on the plate and then he didn't take it. Not only take it, he cost you some very necessary points. मतलब it was basically the difference between 3 and 1, 3 and 1, 3 and 1. कभी कभी 0 and 1, 0 and 1. मतलब ये जो मतलब ये हालैंड ऐसे नहीं करता. हालैंड मतलब 1-2 गोल मार देता है, फिर उसके बाद and also if you relying on a striker to goal. निकोलस जैक्सन 50% भी प्लेयर नहीं है ब्रो. हालैंड का तो निकोलस जैक्सन, वो तो मैं एक्सेप्ट करता ही हूँ. नहीं मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, चांस मिसिंग का तो बोल रहा था. उसका मतलब हाँ, मतलब उसकी बुराई इसलिए भी आई वांट गिल्टेज अपॉर्चुनिटीज थी उसके पास जो उसने मिस करी. क्योंकि आजकल को जो ज़माना ऐसा हो गया है, राइट, आजकल का जो ज़माना और जो क्वालिटी ऑफ द फुटबॉल ऐसा हो गया है, 10 मतलब स्ट्राइकर का एक एट्रीब्यूट तू कर लेगा अगर कंसिस्टेंटली 3-4 मैच में, यू आर हेल्ड द बेस्ट प्लेयर. एक ज़माने में हैरी केन करता है, ही इज़ बेसिकली बिल्ट फॉर अ बेस्ट स्ट्राइकर, कि वो दोनों सप्लाई भी करता है, गोल स्कोरिंग मशीन भी है. राहुल, सबको याद है तो राहुल भी करता था, वैन निस्टेलरॉय करता था, बर्बाटोव, इवन जब वैन पर्सी जब बुढ़ा था तब वो करता था. डिमिटर बर्बाटोव करता है, रूनी करता था स्ट्राइकर जब खेलता था, ड्रोग्बा करता है, मतलब आई मीन एलन शेरर करता है, इयन राइट करता है. एक चीज में एंडी कोल करता है. मतलब ब्रो एंडी कोल का एक ओवरलैप पे इंटरव्यू था. हाँ. मतलब उसने सीधा सीधा बोल दिया, पता है, कि उससे पूछा था मतलब कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के बारे में, व्हेन यू प्ले हाउ डिड यू फील. पता है उसने क्या बोला था? उसने पिछले सीजन है ना बहुत गोल्स मारे थे, आई डोंट नो 30-35 गोल्स मारे थे, और मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ तो 42 वाला भी कोई सीजन रहता है एंडी कोल का. उस टाइम शायद गेम्स ज़्यादा होते थे मेरे हिसाब से, है ना. तो उसने उसका पता है क्या बोला था उसने, कि आई एम प्लेइंग फॉर अ मैनचेस्टर यूनाइटेड लेवल ऑफ ए क्लब. ठीक है, मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसे टॉप लेवल वाले क्लब के लिए खेल रहा हूँ. गोल स्कोरिंग इज से मैं अपनी जगह टीम में जस्टिफाई नहीं कर सकता हूँ. दैट वाज हिज वर्ड्स, कि मैं सिर्फ और सिर्फ गोल स्कोरिंग से मैं अपनी जगह जस्टिफाई नहीं कर सकता हूँ. मेरे को प्रेस भी करना पड़ेगा, मेरे को भागना भी पड़ेगा, मेरे को गेम भी कनेक्ट करना पड़ेगा, मेरे को ड्रिबलिंग भी करनी पड़ेगी, मेरे को असिस्ट भी देने पड़ेंगे, मेरे को जो कर सकता हूँ ना बंदा, मेरे को सब करना पड़ेगा. एंड दिस वाज हिज वर्ड्स कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए सिर्फ मैं गोल स्कोरर नहीं रह सकता हूँ, आई हैव टू बी ए कंप्लीट स्ट्राइकर. बट वही है ना यार, आजकल का वही मैं बता रहा हूँ ना, आजकल का जो इतना सोशल मीडिया में इतना छोटा और वॉलेटाइल है कि मतलब तू ये तो तीनों चारों चीज़ों में एक भी कोई चीज़ बहुत परफेक्टली कर लेगा ना, तेरा पीआर एजेंसी आ जाएगा, तू वहाँ पे बन जाएगा. मतलब 50,000 ट्वीट्स आ जाएंगे कि ज़ग्ज़ी हैड वन ऑफ द बेस्ट 50 आउट ऑफ 50 टचेस कंप्लीटेड, 100% पास. बट भाई he has to also score bro, his team is struggling, 0-0 draw. इसका मतलब ये थोड़ी है कि I want to be good. पर फर्मिनो से तू एक्सपेक्ट कर रहा था क्या गोल्स का? नहीं, क्योंकि लिवरपूल टीम बिल्ड नहीं कर रहा है ना यार, मैनचेस्टर यूनाइटेड बिल्ड अराउंड. तो गलती किसकी है? गलती कोच की है ना. कोच एग्जैक्टली प्लेज में फैसिलिटेटर. क्योंकि वो बंदा वो सब, हैरी केन से तुम एक्सपेक्ट करो कि हैरी केन बेंच वो ड्रॉप भी कर ले और फिर आगे जाके भग के हेडर भी मार ले, तो वो नहीं हो सकता. हैरी केन वो करता भी नहीं है, और ही इज बेस्ट, मतलब ही इज प्रॉब्ली द बेस्ट स्ट्राइकर इन द वर्ल्ड बार हालैंड, है ना. हैरी केन जब टॉटनहम में था लास्ट में, तो ही यूज्ड टू ड्रॉप एज वेल एंड ही यूज्ड टू स्कोर एज वेल. नहीं तो पर ज़ग्ज़ी का मैं बोल रहा हूं कि ब्रो ही इज यंग, वो अभी हैरी केन लेवल पे नहीं पहुंचा है. नहीं, हैरी केन लेवल पे नहीं, मतलब आई एम नॉट सेइंग हैरी केन लेवल पे पहुंचना है, यू हैव टू बी इन द डायरेक्शन कि मेरे को स्ट्राइकर भी बनना है. मेरा हाँ, वो मैं कंप्लीटली एग्री, मैं मना नहीं कर रहा हूँ उस चीज के लिए, वो चीज मैं एग्री करता हूँ, पर उस चीज को लिए यू कांट कॉल ज़ग्ज़ी शिट.
मेरा Yeah, ये yeah, of पॉइंट course, of मेरा course. ये पॉइंट है कि निकोलस जैक्सन को सबने ब्रो राइट ऑफ कर दिया था कि मतलब उसको भेजो नूनेस से कंपेयर कर रहे थे यार लोग उसको ये हॉयलैंड से कंपेयर कर रहे हैं ब्रो लोग जो मतलब गंदे फुटबॉलर्स हैं बेसिकली मतलब जो बॉल वही ग्रेनेड वाली टेररिस्ट है बेसिकली जो फुटबॉल पे जिनको मतलब बेसिक्स ऑफ द फुटबॉल भी नहीं है ना उनके पास टच है ना ड्रिबलिंग है ना कुछ है नूनेस हमेशा वंडर गोल्स क्यों मारता है ब्रो वो इसीलिए मारता है ना क्योंकि वो अंधा भरता है कुछ जाते हैं कुछ नहीं जाते हैं वो फिनिश नहीं कर रहा है निकोलस वो क्या बोलते हैं डार्विन न्यूनेस वो अंधे भर रहा है बेसिकली और फुटबॉल ऑन द बॉल तो वो गंदा ही है सबको पता है Yeah. तो मैं बोल रहा हूँ कि तुम है ना एक क्वालिटी की वजह से उस बंदे को तुमने बिल्कुल राइट ऑफ ही कर दिया कि ही शिट निकोलस जैक्सन को शिट मैं कभी फ्लिप फ्लॉप नहीं हुआ ब्रो आई डोंट हैव टू मेक एनी वीडियोस कि है ना आई एम सॉरी निकोलस जैक्सन या फिर आई एम जिसको मैं नेगेटिव भी हूं कि आई एम सॉरी साका आई एम सॉरी ब्रूनो मेरे को बोलने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि मैं कंसिस्टेंट हूं कि साका इज अ वेरी 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 गुड प्लेयर बट ही इज नॉट ऑफ द एलीट वो एलीट वाली कैटेगरी में नहीं है क्योंकि वो उसके पास वो कटा नहीं सकता है वो ऐसे कट करके नहीं निकल सकता है मेरे हिसाब से तो वो इसलिए वो उस कैटेगरी में मेरे लिए नहीं जाता है वे में मेरे को ऐसे सॉरी वाली वीडियोस बनाने की जरूरत नहीं जो आधा फुटबॉल ट्विटर बना रहा है बेसिकली I agree to it. Nicholas Jackson is one of the brightest game, but I think West Ham, I would say West Ham is poor. I think ये manager का TikTok time आने लगा है. I think having the signings, Fulkrug, I think Fulkrug maybe fit नहीं है या मतलब maybe he's injured again कि उसने उसको नहीं खिलाया. I think जेरार्ड बोवन को उसने false line खिलाने की कोशिश किया. It didn't work out at all. वो he was basically out of his depth or out of his place. But यार मेरे को बहुत अच्छा एक और प्लेयर लगता है ही मोहम्मद कुडूस यार दोनों विंग्स में उसने दोनों को फक किया है उसने ही फक्ड कुकरेया एज वेल ही आल्सो फक्ड मैंने फोफाना एज वेल मतलब इतना मतलब यार ये वेस्ट हैम गया क्यों यार ये बंदा यार ही हैज द कैपेबिलिटी ब्रो टू कंट्रोल गेम्स ब्रो तभी तो टेना को टेररिस्ट बोलते हैं ब्रो कि ही हैड कुडूस एंड ही हैज एंटनी फ्रॉम आयाक्स टू कितना अच्छा होल्ड अप प्ले देखा उसका कितना भी प्रेशर दे रहा हूं होल्ड अप चेस्ट पे लेके वो अंदर वो अच्छे से पास दे देता है एंड ही हैज द कैपेबिलिटी टू रोल ओवर द पीपल एज वेल ब्रो ही हैज बोथ द थिंग्स ही इज अ फुटबॉलर एंड ही इज अ फिजिकलिटी आल्सो ही इज अ एथलीट आल्सो शूट भी अच्छा उसका पर फर्स्ट ही इज अ फुटबॉलर एंड देन ही इज अ एथलीट तभी तो मैं टेना को भाई फुटबॉल उसको फुटबॉलर्स क्यों नहीं पसंद है क्योंकि he had the option of Kudus and he had the option of Anthony and he bought Anthony and basically it was the one guy in West Ham team I could say मोहम्मद कुडूस जो पॉजिटिव था और जो खेलने की कोशिश कर रहा था कि भाई गोल तो मारें क्या हम लोग कि आपस में ही पास देते रहे हम लोग जब सेकंड हाफ में उन्होंने सब्स्टिट्यूट किया था पकेटा आई थिंक पकेटा यार आई थिंक ही इज लॉस्ट हिज मोटिव राइट बंदा अच्छा टैलेंटेड है उसको चाहिए शायद हाँ मन नहीं है ना इन सब प्लेयर्स को यार इन सब प्लेयर्स को ना कुछ कुछ लोगों को यू हैव टू कीप ऑन मोटिवेटिंग देम टू क्रिएट मतलब गुड थिंग्स बट एज ऑफ नाउ द टीम इज वेरी पुअर So what he will do? So Trent का भी जो interview, I think let's talk about this. So I think it was a wonderful performance by Chelsea. Hats off to Nicholas Jackson, proving that he is not like the people who have stated. He has the finishing ability. मेरे में एक चीज़ lacking था. I think उसके वजह से you guys have suffered. I think you endured it. बट मोस्ट ऑफ द चेल्सी फैंस सफ़र किए थे क्योंकि दे थॉट कि भाई मेरे को 3 पॉइंट्स चाहिए इस टाइम की वो गोल मार दे क्योंकि वो गिल्ट एज था It is not like something he created out of himself. पर पाल्मर के अलावा कौन गोल मार रहा था exactly. और दूसरी चीज he is not getting the amount of chances that Haaland was getting. उसको ब्रो तुम 2 chances दोगे और 2 chances में से एक गिल्ट एज होगा और एक हाफ चांस होगा और वो अगर वो मिस कर देगा तो तुम उसको गाली दोगे बेसिकली इस सीजन वो इजी गोल्स भी मार रहा है ब्रो इस टाइम आई थिंक ही इज दिस सीजन ही हैज स्टार्टेड वेल दैट्स व्हाई और इस सीजन वो टफ गोल्स भी मार रहा है बेसिकली और एंड आई एम नॉट सेइंग कि मैं जैक्सन से पूरा कन्विंस्ड हूं या वैसा हूं मैं अभी भी नहीं बोल रहा कि ही इज अ मतलब वेरी वेरी गुड स्ट्राइकर वो हालैंड की लेवल पे पहुंच चुका है आई एम स्टिल से कि बाय योकेरेस क्योंकि योकेरेस को हम स्पोर्टिंग में देख रहे हैं वो पेल रहा है एंड ही हैज एवरी काइंड ऑफ फिनिशिंग एंड ही हैज स्कोर्ड इन चैंपियंस लीग एज वेल हां और ही इज अ फिनिशर ओसिमन इज अ शूटर विक्टर योकेरेस इज अ फिनिशर उसके बुक में तुम हर काइंड ऑफ फिनिशर इज अ चिप मारता है वो शूट लेता है भरता है वो डबल डी वाला डबल शूट वाला भी करता है वो तो उसके पास फिनिशेस है एंड आई एम स्टिल सेइंग कि बाय योकेरेस बेसिकली बट एक बंदे की और मैं तारीफ करना चाहूंगा प्रॉब्ली दो बंदों की फर्स्ट इज काइसेडो वाओ व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय काइसेडो मतलब वो बंदा हर जगह था बंदा हर जगह वो टैकल भी मार रहा था वो बंदा हर जगह थ्रू बॉल भी दे रहा था उसका फर्स्ट इंस्टेंट काइसेडो का मेरे को एक अच्छे लगे कि जैसे वो बॉल विन करता है ना वो पीछे देखता नहीं है वो हमेशा फर्स्ट वो आगे देने का प्रयास ट्राई करता है और जिस वजह से बॉल लूज भी होती है वो हम लेकिन काउंटर्स अच्छे बनते हैं उस चीज में और बॉल लूज होती है तो हम झेलते भी है वो चीज को क्योंकि
It was a 3-0 game, but it wasn't a 3-0 game basically. Yeah. Chelsea took their chances, पर वेस्ट हैम को हमेशा वेस्ट हैम वाज इन द गेम. Yeah, yeah. 3-0 पे भी ऐसा लग रहा था कि वेस्ट हैम वाज कंट्रोलिंग, क्योंकि मिडफील्ड कंट्रोल तब भी नहीं था हमारे पास, क्योंकि नोनी माडुके को चुदा रहा था, क्योंकि नोबडी वाज पासिंग टू नोनी. नोनी माडुके पूरा आउट ऑफ गेम ही था, उसको बंदे को कोई पास भी नहीं कर, और उसको पास भी कर रहे थे तो बंदा ना बॉल होल्ड अप कर पा रहा था, कर भी रहा था तो बैक पास दे रहा था, और वो कटा के बॉल लूज भी कर दे रहा था. प्लस राइट में फोफाना वाज आल्सो नॉट कीपिंग द बॉल. अगर तुम्हारा वहीं पे गुस्टो, जेम्स या फिर तुम नेटो होता ना तो बहुत अच्छा होता. तो नॉनी, योर डेज आर नंबर्ड. एंड वन मोर प्लेयर आई वांट टू टॉक अबाउट ब्रो, कुकुरेया. वाओ, ही वाज एवरीवेयर. मतलब वंडरफुल परफॉर्मेंस. अगेन वन ऑफ ए प्लेयर की जिसके बारे में मैंने कभी लूज होप नहीं करी. सब लोग बोल रहे थे बेन चिलवेल को खिलाओ, बेन चिलवेल को खिलाओ. आई टोल्ड एवरीवन, मतलब जो भी मेरा थॉट्स है. I don't think Ben Chilwell को खिलाने के लिए लोग बोल रहे थे. I think was there any protest? I don't think so. It was there for Gallagher, but not for Ben Chilwell. रॉरी जेनिंग्स और ये चेल्सी के जो बड़े फुटबॉलर्स है, जो 300K वाले जो यूट्यूबर्स है ना, प्लस वाले, वो एवरीवन वाज देयर कि बेन चिलवेल को खिलाओ, कि मतलब कि तुम कौन लेफ्ट बैक को खिलाओगे, तो वेगा को खिलाओगे. वेगा को, ही इज ए यंग. तो पर कुकू को तो लास्ट सीजन सबने गाली दिया था ब्रो. नॉट लास्ट सीजन, फर्स्ट सीजन जो आया था उसका टूशल के अंडर वाला. सेकंड हाफ उसने अच्छा खेला था. फर्स्ट हाफ ही वाज हग्गू. फर्स्ट ही वाज ओके, ही वाज एवरेज. Average. nothing to great boost about and nothing to complain about. वैसा वाला वो एवरेज, बिलो एवरेज की कैटेगरी में था. पर सेकंड हाफ वो जब इंजरी के बाद आया था ना, वो उसके बाद वो अच्छा करने लग गया था. पर दिस सीजन और उसके बाद जो फिर उसका यूरोज हुआ, वाओ, यूरोज में भी उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया. और नाउ ब्रो उसका जो इन्वर्ट करने वाला रोल है ना कुकू का, वो सीख चुका है. वो अच्छे से कुकू को पता है उसको क्या करना है. एंड व्हाई? बिकॉज ही इज अ गुड फुटबॉलर. बेसिकली ही इज द स्पेनिश वर्जन ऑफ रिको लुइस. रिको लुइस जो करता है ना सिटी में, जो मतलब बिल्कुल मतलब क्या बोलते हैं, मतलब हरी ऑन द बॉल, एंड नॉट इन ए नेगेटिव वे, इन ए गुड वे, कि तुम्हारे पास कंट्रोल है उसका, पर तुम हरी कर रहे हो कि तुम जल्दी से किसी को पास दे दोगे, तुम 1-2 खेलोगे, तुम निकल जाओगे, वैसा करोगे. और कुकू वाज डूइंग परफेक्टली. तो कुकू को ये अपना रोल समझ में आ चुका है, मुझे क्या करना है. एंड ही इज प्रॉब्ली द फर्स्ट और सेकंड और थर्ड नेम ऑन द गेम शीट, टीम शीट नाउ, कुकुरेया. So again wonderful. Again 2-3 points की मरेस्का के बारे में बोलना चाहूंगा कि again we were losing the midfield battle after the second goal. Second goal से लेकर जब तक हमारा थर्ड गोल के बाद भी, मतलब फर्स्ट 2 गोल तो क्विक फायर थे, फटाफट हो गया. सेकंड गोल के बाद 25 मिनट्स के बाद और प्रॉब्ली 70th मिनट तक, जब तक तुम बंदों को नहीं लेके आ गए थे, ये नेटो को नहीं लेके आ गए थे तुम बेसिकली, तब तक क्या बोलते हैं, वी वर लूजिंग द मिडफील्ड बैटल. दूसरी चीज इसलिए भी थी क्योंकि पाल्मर को अब लोगों ने फिजिकल होना स्टार्ट कर दिया है. पाल्मर के साथ वो अभी तो उसका बॉडी पहले से गिरने के लिए रेडी रहता है. वो दे हैव स्टार्टेड रफल हिम अप. पाल्मर को अब बोलते हैं भाई अब आके तेरे को पेलेंगे, मतलब एक बार तू फॉल कर, एक बार वो फॉल करे. एग्जैक्टली, दे विल टेक टर्न्स ऑन हिम. पाल्मर ने कम से कम मेरे मतलब 6-7 बार रेफरी को दिखा दिया होगा, बट रेफरी ने बोला कि इसका तो पहला है, इसका तो पहला है, क्योंकि एक बंदा जाके उसको धक्का देके जा रहा है. They were taking turns on him basically. So मतलब but I think he has to grow up as well. I think he has to level up his game as well. मतलब बहुत जल्दी, but यार मेरे हिसाब से इतना जल्दी वो एटीट्यूड, मतलब उसका पोस्ट मैच इंटरव्यू भी देखा था, काफ़ी डिसमिसिव था. Zlatan bro. I think he's a very different kind of a guy. I think उसका पीक बहुत जल्दी मतलब nowadays right. पर ब्रो तेरे को वो बंदा होने के लिए you have to भी थोड़ा सनकी होना पड़ता है वैसा. I don't think so. He has that. You have to have that mindset also कि मैं वो वाला पास खेल सकता हूँ. भाई but देखना ये सीजन देखना भाई, he has not started well bro. Apart from the 3 one-game assist जो नॉनी ने किया था, उसके बाद उसने कुछ भी नहीं किया. और ये तो गोल उसने चल डाल दिया. It's a good finish. Very good finish. But near post again, right? I mean far post वो मारता या चिप मारता तो I understand, but it's a near post finish. खंबा लग के मारा ना. खंबा लग के गया, but I mean keeper, I mean आरियोला तो मतलब उसने तो छोड़ ही दिया था. और क्या उसने दोनों गोल में उसने मतलब लिटरली मतलब एक ही जगह निकलस जैक्सन मार सकता था वो नटमैग. उसने आजकल तूने बहुत कम लोगों को देखा होगा जो नटमैग खा रहे हैं, बिकॉज पीपल आर क्लोजिंग देयर लेग्स. नहीं, और स्ट्राइकर्स आर आल्सो शिट. स्ट्राइकर्स वो भी हो सकता है. स्ट्राइकर्स कोई नट वही तो हमने लास्ट नहीं एक्चुअली पता है क्या होता है, भागते हुए आते हैं ना लोग, मतलब जो कीपर भागते हुए आता है तब तू अड़ा सकता है उनके टांगों के नीचे. बट द प्रॉब्लम इज कि जब स्टेबल रहता है ना तब लोग ऐसे कर लेते हैं. तो डीन एंडरसन ने किया था ना, डीन एंडरसन के ऑलमोस्ट बीच से किया था ना. उसने क्या किया, उसने बंद कर लिया था ना. देखा उससे सेम तो कमेंटेटर ने तब भी बोला था कि मैं जो देख डीन एंडरसन कर सकता है. वी सॉ द सेम अगेंस्ट निकोलस जैक्सन. जब कीपर आगे आ रहा होता ना तब तुम वो कर्ल वाला फिनिश उसके तब आराम से डाल सकते हैं उनके टांगों के नीचे. वो तो हम लोग देखते ही हैं, चैंपियंस लीग में ऑलमोस्ट रोज होता ही है वो. इवन मैड्रिड के ऑलमोस्ट हर गेम्स में.
एक हमने जो फुटबॉलिंग क्वालिटी के बारे में डिस्कस करा था कि हाउ मेनी नटमैग्स आर वी सीइंग इन अ गेम नाउ, हाँ। बेसिकली फुटबॉल। आज के मैच में कितने नटमैग थे? आज मैंने के एक नेट भी मैच नहीं में देखा। एक्चुअली एक था शायद, बर्नार्डो सिल्वा ने एक किया था शायद आज के मैच उसके में। बाद उसे कटाया नहीं होगा। कटाया नहीं, वो नटमैग हो गया था, फिर उसके बाद वो दूसरों ने बॉल ले लिया था। बर्नार्डो सिल्वा वाज पुअर टुडे ब्रो, ही वाज लाइक हेल्पलेस। एब्सोल्यूट पुअर। मतलब व्हाट अबाउट अब गुंडोगान? बर्नार्डो गुंडोगान के एक चांस क्रिएशन के बाद तो तेरा गुंडोगान को क्या हो गया था? एक चांस उसने क्रिएट किया था, नहीं, उसके पर बाद तो रॉड्री, उसके पास नॉन रॉड्री नहीं था ना, एग्जिस्टेंट। रॉड्री नहीं था ना उसके साथ। हाँ, आज रॉड्री उसको भी चाहिए, उसको भी रॉड्री चाहिए। अब वो बुढ़ा भी हो चुका है ना। बॉल कलेक्ट करके मुझे दे दे। हाँ हाँ, अब उसको भी चल कोई बंदा चाहिए रॉड्री। ठीक या है, आई मीन लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट गेम गाइस, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट लंडन क्लब। another Again, disgrace. exhilarating game for Tottenham. I think it was again Tottenham Hotspur Stadium, जो fans रो रहे थे भाई, win दे दे, win दे दे, win दे दे। At last उनको एक win देगा। They didn't deserve. I would say they deserved it. No, they didn't. Because Bro, उनका, Brentford had so many chances. I mean, Brentford के बहुत they सारे had chances, थे। but I would say you couldn't say they deserved it. विकारियो बेंच ऑफ वंडर सेव्स कर रहा था उस मैच में। हाँ, वंडर सेव्स तो कर रहा था, बट इवन दे हैड देयर अपॉर्चुनिटीज। वो तो हर मैच में टॉटनहम का खेल यही है कि who is taking the most out of the, opportunities. But if you look at the goals which they scored, it basically came from Brentford's own mistake, apart from the James Maddison's chip. But actually Brentford won. Actually, Brentford lost the game 3-1 to Tottenham Hotspur, and this game is also marred by controversy. बट उसके बाद मैंने और पाल ने बहुत रिसर्च किया, उसके बाद ही हम लोग को डिसीजन आया कि ओके। बट पाल, टेल मी अबाउट द गेम ब्रो, हाउ वाज इट गुड, एक्सिलरेटिंग? आई थिंक इट वाज एन एक्साइटिंग, राइट, बैक एंड फोर्थ लाइक अ बास्केटबॉल गेम चल रहा था। यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, मतलब मजा आ गया था देखने में। But if I am a Tottenham fan, I am worried. Yeah, If I am a Tottenham fan, I am worried. I don't think this is sustainable as well, bro. Van de Ven, Exactly, मतलब देखना, Van de exactly. Ven हर बार लास्ट डिच चैलेंज करता है यार। हाँ, भाई exactly. लास्ट डिच चैलेंज ही गेम है क्या Van de Ven का? Yeah. यार मेरे को समझ नहीं आ रहा यार ये चीज। Exactly, वही सेम चीज जो लिवरपूल वाले मैच में। If I am a Liverpool fan, I didn't learn anything new. हाँ। उस वाले वो बोर्नमथ को जो तुम्हें 3-0 पेला, क्यों? क्योंकि सब कैपा था। एंड ऑल्सो दैट 3-0 मैच में हम लोग, मैं ये डायलॉग बोलने वाला था कि अगर जिसने भी मैच देखा होगा, हाइलाइट्स देख के लोगों को लगा लिवरपूल डोमिनेट द शिट आउट ऑफ बोर्नमथ, बट नहीं हुआ। बोर्नमथ पे पास हजारों अपॉर्चुनिटीज थे, जस्ट बिकॉज they don't have enough quality, they were not able to score, and they have Kepa, but they stretched Liverpool defense like anything. मतलब कोनाटे तो नॉन एग्जिस्टेंट, वैन डाइक नॉन एग्जिस्टेंट, रॉबर्टसन नॉन एग्जिस्टेंट। हाँ, चेल्सी के साथ, हाँ एग्जैक्टली। So but as a Spurs, as a team की at least they got the 3 points in the bag, right? At least सोलांकी ने गोल मार दिया, जॉनसन ने गोल मारा। I think for them, right, ये 3 players पे बहुत criticism चल रहा था, इन्होंने कुछ नहीं किया अभी तक। Still, I don't think the players would have gotten the confidence from scoring. मेरे को ये भी नहीं लगता कि प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस आया हुआ है ये गोल मार के, क्योंकि भाई सारे गोल ऐसे बहुत गंदे वाले गोल थे। मतलब एक में भी किसी का वो नहीं दिखा मुझे कि क्लास, एक भी गोल में कोई क्लास चिप था ना, मैडिसन का चिप था, वो तो क्लास था, क्लासी फिनिश था, पर जब तक बॉल उसको कैसे मिली वहां तक तो कोई क्लास नहीं थी। हाँ, वो तो इट वाज अ ब्यूटीफुल पास फ्रॉम सन, बट इट वाज ऑलमोस्ट 3-on-2 था। हाँ, पर वो थर्ड गोल बोल रहा है क्या तू? थर्ड गोल लास्ट वाला चिप, थर्ड गोल तो गिनूं ही नहीं भाई मैं। आई एम नॉट इवन काउंटिंग द थर्ड गोल। नहीं, फिनिश तो अच्छा था ना, चिप नहीं, पर वो थर्ड गोल इट्स लाइक कि जो गैब्रियल हीसुस ने जो किया था ना। हाँ एग्जैक्टली, मैनचेस्टर के अगेंस्ट कि वो सरका के ले गया था मार्टिनेज और उसने, तो वो वाला गोल है ब्रो वो। आई एम नॉट काउंट, ओ भाई वो गोल मैं काउंट नहीं करूंगा। तुम 2-1 पे वो फिनिश कर सकते हो, तुम 1-1 पे वो फिनिश करोगे ना, देन तब मैं मानूंगा बेसिकली। और जो उनका फर्स्ट गोल था वो भी तुक्का था, वही तो। If I am an Arsenal fan today, but they are pressing, right? Pressing at least. नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ। If I am an Arsenal fan today, I didn't learn anything new. तो जो हुआ expected था सबको। If I am a Tottenham fan, I didn't learn anything new. Plus, I am worried. Liverpool. If I am a Liverpool fan today, कि I didn't learn anything new. Plus, let's see. Yeah. तो और Arsenal का क्या है? I didn't learn anything new today, but I am happy. Yeah. तो ये तीन रिएक्शन है 3 मैचेस के बेसिकली। तो टॉटनहम फैंस ब्रो, दे विल हैव मतलब ऐसा टेरिफिक मतलब बहुत गंदी राइड होने वाली है उनकी, ट्रेजिक राइड होने वाली है पूरा प्रीमियर लीग में, क्योंकि प्लस उनके पास ब्रो जो वो
द सब्स्टिट्यूशन दे ब्रिंग ना, वहीं पे भाई उनको फैंस को मतलब है ना, वहीं पे वो वहीं से बाहर निकल जाना चाहिए वो स्टेडियम से, कि जैसे वो फर्स्ट सब सेकंड सब लाते हैं ना, वहीं पे छोड़ दे रहे हैं। भाई किसको ला रहे हो तुम यार, तुम जो टीमो वर्नर इसको ला रहे हो, वो आरसी खत्म ग्रे आया था इस बार। वो खत्म हो चुके हैं ब्रो, एवरीवन इज खत्म। मतलब तुम्हें यंगस्टर को खिलाना पड़ेगा, पर आई डोंट नो, टॉटनहम विल हैव अ शिटी राइट, मतलब मेरे हिसाब से अभी टॉटनहम का दिन अभी अच्छे नहीं है, Yeah, they will I have think, bad and days they ahead, have to look for a different goalkeeper as well. क्योंकि एक चीज Vicario is a हमने good stopper, but he's not good on anything else. या Anything else मतलब he's basically a liability है, क्योंकि कभी कॉर्नर्स कभी पे तो गोल्स तो कॉर्नर्स पे घुसते तो ही वो हैं लाइबिलिटी है ही। कॉर्नर में, सेट पीसेस में, और बहुत हड़बड़ाता है, बहुत चिल्लाता है, he's not a stable kind of a guy. मतलब इट डजंट गिव द कॉन्फिडेंस टू डिफेंस। एग्जैक्टली, एंड ऑल्सो जो सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी था कि रेड कार्ड why not give red card. So guys, actually this is again a loophole, मतलब ब्रो, loophole ही है। इट्स रेड कार्ड ब्रो, इससे बड़ा रेड कार्ड हो ही क्या मतलब सकता है यार। तुम बॉल एक्चुअली आके डेफिनेशन क्या है बाल कि तुमने रेड कार्ड तो आके तेरे, हाथ मार दिया यार तुमने बाहर बॉल की, तुम ऐसे और पता है ये क्लियर एक्चुअली गाइस ये है कि रेड कार्ड क्यों नहीं दिया, क्योंकि गोलकीपर जब अभी बाहर हैंडल कर सकता है, अगर वो क्लियर गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है दूसरी टीम के लिए तो इट्स येलो। अगर वो गोल को स्कोरिंग, जैसे अभी कभी कभी क्या होता है, टप्पा खाता है, कभी कभी गोलकीपर गलत टच कर लेता है, जो स्ट्राइकर आसपास ही रहता है तो क्या करता है, गोलकीपर डाल देता है, तो इसका मतलब पीछे एक ही बंदा है और गोल स्ट्राइकर कुड हैव हैड अ गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी। बट इस टाइम क्या था, कि भले ही गोल ब्रेंटफोर्ड वाला प्लेयर था आगे, बट देयर डिफेंस लाइन वाज पीछे। नहीं, पर तो इसलिए वो क्या वो- दिक्कत है, वो ब्रेंटफोर्ड को अगर वहां पे गोल मिलती, खाली गोल था ना उनके पास, तो वो तो आगे ले जाके मार ही देते आराम से। हाँ, ब्रो ऐसे तो तुम बेंच बॉल उठा के ले जा दूसरे के फेंक दो। वो कौन सा गेम होता है वो अपन खेलते हैं ना, वो हैंडबॉल। डी के बाद, हाँ हैंडबॉल खेल लो भाई। ऐसे तो तुम, हाँ गोल के बाद तुम्हें येलो ही तो मिलेगा, मैं ले लूंगा येलो। Disgrace, What the bro. fuck, bro? I think Disgrace, that is the absolute disgrace, that is bro. the game मतलब where you should have given him red. और फिर उसके बाद मतलब यहाँ तो तुमने मैच्योरिटी नहीं दिखाई। हाँ। मतलब बैचो, मतलब तुम्हें जहां पे तुम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से मैच्योरिटी दिखा देते हो, हाँ। तुम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से लेटर ऑफ द लॉ ले आते हो, हाँ। तुम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से रेड कार्ड येलो कार्ड में डिफरेंशिएट कर लेते हो, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से देख लेते हो कि हाँ ये सेकंड येलो हो सकता है यार। भाई ब्रो मतलब ये एक्चुअली यूके का मैं होना चाहिए कि रेफरी स्वैप्स होना चाहिए, कि ला लीगा वाले यहाँ आ जाओ, प्रीमियर लीग वाले वहाँ चले जाओ, और मतलब ऐसे कुछ। भाई वाई प्रीमियर लीग वाले वहां चले जाओ, उनको क्यों दुखी करे अच्छा, उनको मतलब घर ही बैठा दो। हाँ, वाई शुड दे सफर ब्रो, वाई शुड ला लीगा सफर। भाई रियल मैड्रिड और बार्सिलोना में होगा ना, इनको पता चलेगा क्या प्रेशर आता है इनको। तो अभी पता है पूरा यूके का गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट करता है ना, यूके का पीजीएमओएल है, ये लोग पूरा मतलब लेबर लॉस के हिसाब आई से है विल ना। नॉट इवन सपोर्ट कि उनको इंडिया में लेके आओ भाई, हम क्यों सफर कर रहे हैं उन टकलों को। एग्जैक्टली। हाँ, आई लीग और आईएसएल में भी लायक नहीं है ब्रो वो दोनों, या एटलीस्ट टेलर एंड दैट गाय। बट आई थिंक टॉटनहम फैन शुड बी वरीड, दैट्स द ओनली फाइनल पॉइंट। because I think this is because guys we are not hating on Tottenham. Basically the problem is कि ये sustainable factor नहीं है, क्योंकि ब्रेंटफोर्ड का आधा टीम इंजर्ड है पहले तो, and they still dominated you in some parts of session because they had clear cut opportunities. Without जो विकारियो अगर रेड कार्ड है तो ब्रेंटफोर्ड would have easily fucked you apart, right? क्योंकि विकारियो मतलब जो रेड कार्ड जिस बंदे को नहीं होता वही बंदा स्कोर करता है कभी कभी, एंड वो बंदा ही तुम्हारा गेम चेंजर है, एंड ही सेव्ड वो एम्बियोमो वाला शॉट। मतलब ही इज अ गुड शो स्टॉपर, आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम नॉट डिनाइंग दैट ही इज अ गुड गोलकीपर व्हेन द बॉल इज कमिंग राइट एट हिम। द प्रॉब्लम इज ऑफ द बॉल व्हाट ही डज, पोजीशनिंग क्या है उसका, तभी उसका प्रॉब्लम आता है। एंड आई थिंक यू हैव टू थिंक अहेड कि ये बंदा टॉप 4 तुम्हारा के लाएगा या तुम्हारा क्या एम्बिशन है। सेम डाउट जो चेल्सी को सांचेस पे है कि इज ही अ टॉप 4 गोलकीपर। या एग्जैक्टली, हाँ सेम चीज़। और बोर्नमथ वाले लेट्स आई मीन सो टॉटनहम गाइस, आई थिंक kudos to you, you got the 3 points in the bag after a long of draws or हारना which you don't deserve, which you think, but it's part and parcel of the football game. But let's discuss the other match, I think, which is the Liverpool versus at home against Bournemouth. And again, अगर आपने स्कोर लाइन देखा होगा 3-0, आपको लग रहा होगा कि भाई लिवरपूल डोमिनेटेड, बट द मैच बहुत ही उल्टा था। इट इज़ अ डिफरेंट, मतलब सेकेंड हाफ चल ठीक है, लास्ट की 20 minutes आई थिंक इट वॉज ऑल लिवरपूल, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट वॉज ऑल बोर्नमथ। बीच में ये क्विक फायर गोल्स नहीं हुए, तो इट्स ऑल बोर्नमथ ऑल द वे। दे स्ट्रेच्ड आउट लिवरपूल्स डिफेंस अगेन। ये लिवरपूल के घर में कभी क्लॉप के अंदर ऐसा हुआ ही नहीं है, बट पीपल आर नाउ थिंकिंग कि मैं लिवरपूल को जाके एनफील्ड में जाके लिवरपूल की गांड मारता हूँ। वो भी किसने सोचा, बोर्नमथ ने।
I mean, that's a very weird factor. But again, credits to the guy who we all mistrusted. I think Luis Diaz. I think he's scoring goals, bro. I think we know he has the dribbling factor and he's a proper footballer. But हमें ये पता था कि इसे मतलब अंधाधुन प्रॉपर फुटबॉलर नहीं है. बट अभी उसके पास आउटपुट्स भी आने लगे हैं. नहीं पर वही अब लेट्स सी अगेन कितना कंसिस्टेंट है. I mean, हाँ, I agree to it. क्योंकि I will not give these goals to Diaz, I will give these goals to Kepa. हाँ वो तो है. कैपा ने हगाए ब्रो. कैपा कैसे कितना गंदे यार. मतलब सेकंड गोल, फर्स्ट गोल तो भाई मतलब पूरा प्रेशर चल रहा है. बोर्नमूथ ने पूरा प्रेशर लगाया है. Why are you coming there, bro? First of all, why are you coming there? I mean, it's such. That's why उससे पहले तक he was making decent saves. उससे जब वो हगा नहीं था उससे पहले तक he was decent. मतलब decent ही था. half decent. Half decent. मतलब it was decent. It was almost on target. मतलब he could have saved. Any keeper at his level could have saved. But I don't know how he's still playing at this kind of level and making this side of fumbleness. मतलब out of nowhere वो बंदा आया and he did not even run back. उसको पता नहीं dive करके वापस बॉल पकड़ने की कोशिश कर रहा है. such a weird बंदा है यार केपा. I think कहाँ से इसको confidence आता है, कहाँ से इतना. maybe it's because of his born and brought up, right? वो उसका जो religion में ही है. जैसे मतलब he's a Spanish. उसको पहले से बोलते हैं you are one of the best keepers, one of the best keepers, one of the best keepers. ऐसे बोलते हुए आ रहे हैं ना. तभी लोगों को पता चल जाता है कि वो समझ लेता है I am the best player. वही जो एथलेटिक में उसको जब मड्रिड साइन करने वाली थी याद है. मतलब वाज अबाउट टू साइन हिम फ्रॉम एथलेटिक बिलबाओ. रियल मैड्रिड में भी खेला था. हाँ रियल मैड्रिड क्योंकि वापस और नाउ ही वांट्स टू प्ले अगेन फॉर मड्रिड. भाई कि मड्रिड जाना है भाई. यू आर नॉट इवन फॉर द चैंपियनशिप लेवल. तुम्हें चैंपियनशिप ही इज अ चैंपियनशिप लेवल प्लेयर ब्रो. ही इज अ चैंपियनशिप लेवल प्लेयर. वो बट लास्ट थिंग ऑन द कि जस्ट वन पर्सन आई वांट टू अप्रिशिएट इज अगेन ग्रेवनबर्च. Wow, he's a beast. Yeah. Now he is taking the game by the scruff of the neck. वो देख रहा है कि बंदा की क्या करना चाहिए. मस्त कटा रहा है, मस्त निकल फाड़ के निकल रहा है. प्लस प्रॉब्लम तुमने अभी तक कोई अच्छी टीम को खेला भी नहीं है. बेसिकली जो मतलब तुम्हारे मिडफील्ड को प्रेस करे, तुम्हारे मिडफील्ड को सफोकेट करे, तो वो टीम अभी तक आई भी नहीं है. तो लेट्स सी अच्छी टीमों के अगेंस्ट हाउ डज ही फेयर. And also he eats up the midfield like anything. And he is a footballer. मतलब he eats up the fields like anything. मतलब ऐसा लगता है 2-3 स्ट्राइड में पहुंच जाता है उनकी टीम में. करेक्ट. मतलब उसके ही इज अ गुड फुटबॉलर. ही इज अ गुड शोल्डर ड्रॉप अच्छा करता है. वो मतलब क्यूट प्रेस रेजिस्टेंट है बेसिकली. और वो प्रॉब्ली उसकी ड्रिबलिंग वो वन ऑन वन वाली डिफेंडिंग नहीं ड्रिबलिंग नहीं है. पर उसकी जो ड्रिबलिंग वो इवेड करके जैसे कोवा निकलता है ना. प्रॉब्ली ही इज अ लिटिल बिट सिमिलर टू कोवाचिच उस वे में. कोवा के पास बट इन द पॉजिटिव सेंस में उनको अपना बैकलाइन को सुधारना जरूरी है. मतलब अभी कोनाटे ट्रेंट का इंटरव्यू देखा. ट्रेंट ने क्या बोला था कि मेरे को पता नहीं. उसने ऐसा बोला था कि आई वांट टू विन कप्स. जहाँ पे जीत रहा हूँ मैं. माई एम इज टू विन. सो आई वांट टू बी देयर वेयर पीपल आर विनिंग थिंग्स. So ट्रेंट को पता नहीं क्या हो गया ब्रो. ट्रेंट को मतलब he wants to. I think he's making a move for Madrid, bro. I think so. वो ठीक है पर he wants to become the man now. कि मैं इस टीम का मैन हूँ. I am the lion of this team. I am the head of this pride. पर you are not the head of this pride. जब तक वर्जिल वैन डाइक और वो है नहीं तो मतलब तो ही इज अटेम्प्टिंग टू मच ब्रो. वो बहुत ज्यादा करने का ट्राई कर रहा है अभी. बहुत ज्यादा वो देख रहे नहीं. बॉल लूज बहुत कर रहा है वो अभी करंटली. लेट्स सी कि हाउ डज इट सस्टेन. मतलब अभी आई एम नॉट फॉर्मिंग एनी ओपिनियन ऑन लिवरपूल. इट वाज अ गुड विन, वेरी गुड विन. कांग्रेचुलेशंस. सलाह स्टिंकर. Yeah, again nobody will discuss it. Yeah, but यार hats off to one player. मतलब जहाँ पे वो बंदा बेंच एक टैप इन और एक आउटसाइड ऑफ द फुट वो बोल देगा ना, पास दे देगा ना एक वो आ जाएंगे वापस. हाँ वहीं पे हजार चूतिया नहीं बट एक बंदे को हम लोगों को वो करना ही है, मेंशन करना ही है. वो न्यूनेस नहीं. I don't want भाई ये बंदे को मतलब तू 3 यार्ड से टैप इन करने को बोलेगा वो मारेगा नहीं. ठीक है बट बोलेगा भाई हाफ लाइन से मतलब 5 लोग खड़े हैं डी के अंदर. तेरे को बस इतना सा स्पेस है वहां से गोल मारेगा कि वो गोल मार देगा वहां से. क्यों मतलब कितना मतलब यार कैसे है भाई. मतलब इसके सारे गोल्स I will give you the explanation. भाई ठीक है जैसे सुन अगर ये वो बंदा है ठीक है. ये बंदा अगर तू मतलब जॉब अप्लाई कर रहा है ठीक है. सोच ले ये बंदा ड्रॉप हुआ है उसको रिज्यूमे में डाल रहा है. तो रिज्यूमे में इसका हाईलाइट्स देखो. What the fuck bro. तूने मतलब 50 गोल मारे हैं और 50 के 50 हाईलाइट रील्स हैं. Comp would have been good. Comp would have been good. तो मतलब यही है ना यार एक प्लेयर मतलब ये अलग टाइप ऑफ. मेरे को समझ नहीं आता यार वो बंदे का क्या सीन है. मैं बोल रहा हूँ. तूने ट्रिक शॉट्स देखे हैं?
नॉट वो जो डूड परफेक्ट वो वाले नहीं करते, वो वाले नहीं, और भी अलग तरीके करते हैं कि मोबाइल यहाँ से फेंक देंगे, चार्जर में लग अच्छा, जाएगा। तू बोल रहा हजार बार वही वाले 1000 बार में वो, क्योंकि अंधा भर रहा है ब्रो, वो उसके पास फिजिक्स नहीं है उसके लिए कि वो बिल्कुल सोच के ये कैलकुलेशन माइंड में आके बिल्कुल ऐसा कर्ल कराऊंगा मैं, ये करूंगा, वो अंधा भर रहा है। ही इज द स्ट्राइकर वर्जन ऑफ ब्रूनो, कि कब 100 में से 3 गोल वो वैसे जाएंगे ही जाएंगे। लास्ट सीजन भी हुआ था, लास्ट सीजन ही, बट सारे गोल्स उसके वैसे ही ऑलमोस्ट देखा सारे गोल्स उसके वैसे ही जाते हैं वो, बट ही इज नॉट अ फिनिशर। वो that's what, right? If you give him the opportunity, he won't take it. Or he is not a good footballer also. Yeah, but he will take this opportunity for himself कभी-कभी। मतलब वो हमेशा ऐसा हो सकता है it's a second goal or third goal, but never the first वही goal. तो nothing new about nothing new. Nothing new, yeah, exactly. And yeah, I mean guys, so yeah, I think that's a wrap up to our Premier League. Last point, Villa won 3-1 basically. Yeah, again 3 goals. Comeback, Duran goal again. Wow, Duran, last minute again. He is scoring every type of goal, bro. He is scoring the tap-ins also. He is scoring the bangers also. He is scoring the headers also. He is scoring the cutbacks also. वो सारे opportunities. Yeah, सारे तो Aston Villa again. Let's see आगे क्या होता है. Newcastle lost 3-1 again to Fulham. But they are looking very shaky. Aston Villa, I think मेरे को लगा नहीं उनको चैंपियंस लीग इतना भारी पड़ेगा, मतलब बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा है उनको। और उनके पास प्लेयर्स भी नहीं है ना, अभी इंजर्ड है ना थोड़े बहुत प्लेयर्स उनके अभी, मतलब बहुत मतलब भारी इन द सेंस कि वो they thinking now they are realizing yeah, but I like him, I trust एमरी बहुत अच्छा कोच है वैसा उससे जब उसको एमरी को लगता है ना कि हमारे पास चलो प्लेयर्स नहीं है, उसी टाइम वो बंदा बिल्कुल मतलब वो विलारियल टैक्टिक्स भी लगा देगा अपनी सारी की सारी, वो सिटिंग बिहाइंड द बॉल वो भी कर सकता है वो। पर ब्रो मॉर्गन रॉजर्स अगेन वाओ, पर वो बंदा क्या कर रहा है ब्रो, पेल रहा है भाई, हर किसी को पेल के निकल रहा है वो। उनके पास अच्छे फुटबॉलर्स हैं ब्रो, मॉर्गन रॉजर्स है, टिलीमंस है, रॉस बार्कली है, बॉन्डिया है, और क्या बोलते हैं उन्होंने वो बेचा, डगलस हिल बेच दिया, उनाना आ गया बेंच। अब उनाना भी अच्छा है बंदा है, फिजिकलिटी ही इज फिजिकलिटी फर्स्ट फुटबॉलर सेकंड, बट डिसेंट एनफ फुटबॉलर बेसिकली। प्लस उनके पास स्ट्राइकर्स जॉन वॉटकिंस नहीं, ओली वॉटकिंस है ना? हां ओली वॉटकिंस है, हां ओली वॉटकिंस, योर टाइम इज प्रोबब्ली ओवर ब्रो। योर टाइम टू सिट ऑन द बेंच लास्ट। Yeah, I think but apart from that, I think guys, this has been a bonkers of a Premier League weekend with lots and lots of frustrations, anger, joy, मतलब सब मिला हुआ है। अब तुझे थोड़ा अच्छा लग रहा होगा क्या, मतलब ऐसा पूरा रैंट करने के बाद थोड़ा दिल हल्का होगा। हाँ, लोगों को दिन अच्छा लग रहा है ना, मतलब सुबह रिकॉर्ड करते ना यही नुकसान मेरा टॉटनहम मैच के बाद तो ऐसा लग रहा था भाई कुछ तो कुछ बोलना है पड़ेगा यार। सेम मुझे भी टॉटनहम वाले मैच के भाई कैसे कर सकते हैं, और मेरे को टॉटनहम से ज्यादा उस पे लगा, ये उस पे लिसांड्रो मार्टिनेज पे। हाँ लिसांड्रो मार्टिनेज पे भी, हाँ मतलब वो इतना बोरिंग और डल गेम था कि मैं लास्ट मिनट्स पे 20 मिनट्स पे मतलब कुछ टीम कोई कर ही नहीं रहा था, तो मैं ऐसे ही सोच रहा था कि भाई वो इतना एक्साइट नहीं हुआ था। बट ब्रेंटफोर्ड वाला गेम ऐसा हो रहा था कि वो एक पिनेकल ऑफ द मोमेंट था ना, कि भाई ब्रेंटफोर्ड पूरा प्रेस कर रही थी, उस टाइम आके ये हक के गया है। तो मेरे को लगा भाई उस टाइम भाई ब्रेंटफोर्ड को दे दो यार, ऐसा थोड़ी है ब्रेंटफोर्ड को चीट कर रहे हुए, तो ब्लेटेंट चीटिंग है। दिस इज चीटिंग, बहुत blatant pure cheating. Yeah, so and apart from other news, I think Real Madrid won comfortably, and also Barcelona actually they demolished Villarreal as well. I think Barcelona is the 6th win of the game. I think it's a assist by Lamine Yamal जो outside of the boot दिया है। I think Barca are a different giant. मैंने नहीं देखा। I think Barca अभी लिंक भेजा है, देख लियो। Barca are a different beast now, at least in the league now. But yeah, भाई ब्रो हमारा एनालिसिस कितना परफेक्ट है लास्ट गेम। हमने बोला था कि बार्सिलोना का फोकस अभी प्योर एंड प्योर लीग पे ही है, एंड दे आर डिमोलिशिंग देयर ओपोनेंट्स आउट ऑफ वाटर। and one thing and also I think वहाँ पे माइकल ओली से गोल भर रहा है, और हैरी केन गोल भर रहा है। बोला था भाई, सुन लो बात, ओलिसा का मैंने बोला था ब्रो अच्छे से, नहीं बट जेम ऑफ अ प्लेयर है वो बंदा। मैं तेरे को याद है ना, मैंने वी वर डिस्कसिंग दिस थिंग कि हु इज द लेफ्ट फुटेड राइट विंगर, बेस्ट लेफ्ट फुटेड राइट विंगर इन द लीग, तो प्रॉब्ली साका बोल रहा होगा, मेरे पास पाल्मर भी था बोलने के लिए, स्टिल आई सेड ओली से। मैं बोला ओली से बहुत अच्छा प्लेयर है ब्रो, ही इज अ वेरी कल्चर्ड फुटबॉलर। आई थिंक ही हैज टू ग्रो अप एंड टेक हिज टाइम बिकॉज़ ही इज आल्सो फ्रेंच, तो उसको देखना पड़ेगा कि वो कैसे ग्रो करता है। डेम्बेले को खिलाता है वो डेशाम्स चूतिया ओली से को हटा के, और डेम्बेले मिस्टेक गिल्टेड अपॉर्चुनिटी है in the Champions League. Yeah, but so anyway guys, it's been a huge
वीकेंड बहुत स्ट्रेसफुल भी है एंड बहुत मतलब रिलीफ भी है. आई थिंक मेरे को अभी रिलीफ हो गया है और मेरे को जाके पानी पीना पड़ेगा बहुत सारा, तब जाके मेरा गला ठीक होगा. And please, this is Ranga signing off. Please like, share and subscribe and please keep on watching our videos. Yeah, and this is Paul signing off.